सारे ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू द 366th एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज 20 सितंबर 2023 है और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान जिनको बुलाने का मकसद मेरा पर्सनली ये था कि आई रियली वांटेड टू अंडरस्टैंड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आई रिसेंटली गॉटन रियली इंटरेस्टेड इन इट। मेरी अपनी एक सॉर्ट ऑफ एक जर्नी रही है दैट हैज़ रियली हेल्प्ड मी make sense of what is most important. It has really helped me begin to take control of my mental health, my physical health, and be able to just overall repair the foundations that I stand on. Without those foundations, I think किसी भी इंसान की ग्रोथ जो है वो नहीं हो सकती है, वो रुक जाती है। हमारे साथ आज मौजूद हैं मोहम्मद अमाद साहब, जो कि एक स्पिरिचुअल हीलर हैं, एनर्जी रीडर हैं एंड इंटुइटिव चैनलर हैं। अभी बहुत सारी रैंडम नई चीज़ें हैं और जब मैंने भी सुना था आई एम अ लॉजिकल सॉर्ट ऑफ पर्सन जो कि इस तरह की चीज़ों को जनरली पूरी ज़िंदगी सिनिकल निगाह से देखता रहा है। और जब ये इसके अंदर मैं थोड़ा सा डैबल अराउंड कर रहा था तो आई थॉट कि पहले तो मुझे हुआ कि मैं इसके बारे में बात करूं, मैं समझूं कि ये होती क्या है और मैं उनसे पूछूं कि हाउ डू यू गो अबाउट इट, व्हाट इज़ इट। एंड देन व्हेन आई सॉ इनफ स्टफ ऑन द इंटरनेट आई रियलाइज्ड कि यार ये तो सारा एक तो ऑनलाइन भी पड़ा हुआ है, दूसरा ये कि ये जो बातें कर रहे हैं जब आम आदमी इसको सुनता है तो उसको लगता है कि यार ये तो एमी रैंडम बात है, दे कांट कनेक्ट विद इट। सो आई डिसाइडेड टू गो अबाउट इट इन अ डिफरेंट वे। आज की पॉडकास्ट बहुत डिफरेंट होगी, बहुत फ्रेश होगी इन अ सेंस दैट इट विल नॉट बी अ स्टैंडर्ड पॉडकास्ट बिकॉज व्हाट आई डिड वाज आई आस्क्ड अमाद to do an energy reading session with me that most people take with him, and the idea is that he guides me through a certain meditation and then he reads my energy, जो कि वो कहते हैं कि he connects with my soul and then he is able to read the energy, and that is what we did for the first hour 10 minutes. He basically it's interesting because he sort of connects with my soul and reads the soul and answers some of my questions. Let me just tell you some of the things that he said were just phenomenal. जो मेरे अंदर से मेरी आजकल फीलिंग है, जो मैं अपनी बेगम से डिस्कस कर चुका हूँ, उसके अलावा दुनिया में किसी को नहीं पता. The fact that he was able to bring them out, I don't know how he did it. There is not enough data available on the internet that he could have used to hack it. So if in a way I could potentially say I've become a believer, and so this is a very different episode but a very interesting one. I would definitely urge you to watch it. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ do subscribe to our channel for more conversations like this. अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, आपको नहीं पता इससे बहुत फ़ायदा होता है हमें और हमारे एल्गोरिथम को. So please do like the video, and if you have any thoughts please do share them in the comment section below. I read all of them, and I would love to hear from you to make the quality of conversation and the quality of content better on this platform. But anyways, here is Mohammed Ahmad on Thought Behind Things, Islamabad studio. तो मुज़म्मिल, कोई सा एक सवाल फ्रेम करें अराउंड, मैं अब आपके अनकॉन्शियस में जाऊंगा, तो कोई सा ऐसा सवाल फ्रेम करें जो हमें हेल्प करेगा उसमें जाने के लिए. जैसे कि अगर हम आपकी पर्सनालिटी को अगर हम ये अभी डीकोड करना चाहें या देखना चाहें कि इस वक्त मुज़म्मिल में क्या चल रहा है, व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ मुज़म्मिल, तो उसके हवाले से कोई सा आप सवाल फ्रेम करना चाहेंगे? Could you give me an example of what sort of questions generally people would? So no, you could say कि what areas of my inner world can you highlight right now that would just allow me to better connect with myself? What areas of my inner world can you highlight that would just allow me to experience some sense of reassurance perhaps, or some sense of validation regarding the work that I've already been doing, the areas that I've been thinking about? Right. Probably what I could say, I don't know if that makes sense, but I've had a shift in reality recently. Okay. And I've had a fairly static reality for many years. Okay. And as that shift has happened, automatically that brings with it certain fears. And because I've been so strong as a person for so long, I just it seems like I've forgotten how to, जो मैं शायद 16 साल का मुज़म्मिल होता था ना, जो कि बड़ा सुबह शाम फियर्स में ही चल रहा होता था और
चल लेता था। तो वो शायद उसके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है इस टाइम के ऊपर कि द अननोन के साथ रेकनसाइल करना और उसमें स्ट्रेंथ ढूंढना। सो कुड यू पोटेंशियली आइडेंटिफाई that what part of my personality is nourishing that fear that's making me so uneasy, if that makes sense. That's a beautiful question. दुनिया भर में टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व कर चुकी है। अब आप घर बैठे एक मोबाइल फ़ोन से पूरी दुनिया में किसी किस्म की भी डिफरेंट एसेट्स, स्टॉक्स या इवन क्रिप्टो करेंसीज ख़रीद सकते हैं। जहाँ पर ये टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन आया वहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली हालात ऐसे हैं कि इकॉनमी एक ऐसी जगह पर पहुँची हुई है कि बड़े आजकल बुरे हालात हैं। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सेविंग्स हमारी डिप्लीट हो रही हैं। ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट्स करते ही नहीं हैं और जो करते भी हैं वो 90% लॉसेज अनफॉर्चुनेटली बनाते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है Sarmaya.pk, जो कि अपने फाइनेंशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेनिंग्स भी ऑफर करता है और डेटा भी ऑफर करता है, जिससे आप पूरी दुनिया की मार्केट्स, खासकर पाकिस्तानी मार्केट्स को बआसानी देख सकते हैं। अगर आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं तो आई वुड डेफिनेटली अर्ज यू टू चेक आउट Sarmaya फाइनेंशियल्स प्लेटफॉर्म। इट्स अ रिमार्केबल प्लेस जहां पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स के थ्रू डेटा भी मिलता है, इन्वेस्टमेंट की एडवाइस भी मिलती है और ख़ासकर उनकी ट्रेनिंग्स जहां पर उनके एक्सपर्ट्स जो हैं वो आपको क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट और कमोडिटीज़ और एसेट्स के अंदर ट्रेड करके पैसे कमाना सिखाते हैं। सो चेक आउट द प्लेटफॉर्म एंड चेक आउट देयर ट्रेनिंग्स। नाउ बैक टू द पॉडकास्ट। Okay, we can definitely go into that. We'll take it as a starting point and the nature of the information. Like when I'll connect with you unconscious, हम इस सवाल को हम एड्रेस करेंगे, बट जब हम कनेक्ट करेंगे तो जिस ऑर्डर में वो अनकॉन्शियस इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करेगा मैं आपके सामने रख दूंगा। राइट। तो उसमें जाने के लिए इफ़ यू कैन जस्ट पुट योर हैंड्स ऑन योर नीज फॉर अ सेकेंड, फीट ऑन द ग्राउंड, एंड इफ़ यू कैन क्लोज योर आइज and if you can just visualize a place from either memory or imagination, a place in nature, a comforting, grounding, peaceful place in nature, and if you can keep your back straight a little and just take 6 to 7 slow deep breaths in through the nose, then hold the breath for a few seconds, then out through the mouth. The exhale should be greater than the inhale. And while you're doing that, just try to bring your awareness in your heart, where you would imagine your spiritual heart to be, जिसे हम कल्ब कहते हैं, and just try to let go of your mind. Mind की thoughts से ज़रा आके heart में आ जाए और दिल में बस एक नियत करें कि I give Ahmad permission to connect with me. Okay. And we just need 3 to 4 more slow deep breaths. We're nearly there. Okay. All right. Okay. Now you can open your eyes and just have some water if you can. जितनी हाइड्रेटेड होती है बॉडी उतना आसान होता है एनर्जी से कनेक्ट करना। अच्छा, अभी आप इतनी जल्दी माशाल्लाह से आपने सेंटर किया है, इसका मतलब आप कुछ करने या मेडिटेशन वगैरह रिसेंटली आपने करना शुरू किया, बिकॉज आप बहुत जल्दी हार्ट में आ गए और ग्राउंड हो गए। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब हाथ नीज पे रखने की ज़रूरत नहीं है, अब माइंड क्लियर रखें, एक लंबा सांस बस आंखें खोल के ले लें और अब मुझे आप बस 1 मिनट दें। आई विल कनेक्ट विद योर एनर्जी एंड देन आई विल स्टार्ट स्पीकिंग। While I'm speaking, I just want you to listen and don't try to analyze what I'm saying and just try to receive it. Once I've done that, then we can unpack it together. Right. Okay. Chaji. So the question was, what part of me is nourishing those fears? Okay. Okay. Ideally back straight इस part के लिए, और बस माइंड क्लियर, अवेयरनेस हार्ट में ही रहेगी थ्रू आउट जितना भी हो सके। माइंड क्लियर रखिएगा, फोकस हार्ट पे रखें, जस्ट बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। ओके, नाउ यू आर, आई एम कनेक्टेड विद यू, सो बस मैं देख रहा था। ओके, नाउ यू आर, जस्ट स्टे देयर। ओके, कुछ अभी जो हमें जिस ऑर्डर में इंफॉर्मेशन आ रही है, अभी तो पहले आ रही हैं कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स। रीसेंट डेवलपमेंट्स ये आ रही हैं कि नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलम्ड रहा है लेटली, और इतना ज़्यादा टू द पॉइंट के जो इमेज आ रहा था ना, इमेजेस आर लाइक सिम्बल्स, दे रिवील अ लॉट। जैसे कि इंसान है वो अपने सर पे ऐसे हाथ रख के सजदे में गया और अपने सर पे हाथ रख लिया हो ना, बिकॉज लाइक आई कांट टेक इट, दिस टू मच गोइंग ऑन, आई कांट टेक इट। एंड
Muzammil in that prostrating wale posture and just struggling and just everything is so overwhelming and just there's so much to manage. Nervous system में बहुत taxing हो रहा है. And suddenly what I notice is suddenly there is कोई ऐसा shift आता है मुजम्मिल के अंदर, एकदम से एक एक्सप्लोजन होती है फेथ की. एक एक्सप्लोजन ऐसी होती है कि एक तो एक प्रेयर होती है खुदा के लिए कि लाइक प्लीज़ टेक ओवर और हेल्प मी, और कुछ कोई दुआ है या एक इल्तिजा, मतलब वो आप बेशक लिटरली ना भी करो, बस वो दिल की समटाइम्स पेन इटसेल्फ इज़ दैट प्रेयर. तो एक तो जैसे कि एक प्रेयर है, बट उस प्रेयर के साथ एक स्ट्रेंथ आती है कि आई नो यू कैन टेक मी आउट ऑफ दिस प्लेस. और वो एक फ़ेथ के साथ सडनली जैसे एक तवक्कुल भी, क्योंकि फ़ेथ और तवक्कुल और इट्स ऑलमोस्ट लाइक मैं अपनी शिप को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं गिर ना जाऊँ, एंड सडनली इज़ लाइक आई ट्रस्ट यू एंड देन यू लेट गो. सो दैट मुजम्मिल बीइंग अवेयर दैट देयर इज़ सो मच केओस एंड नोटिसिंग दैट जब भी केओस आया तो मैंने हमेशा उसको रिस्पॉन्ड किया है, और मुझे कॉन्फिडेंस है अपनी एबिलिटी में हमेशा केओस को कैसे निकलना है. मैं तो रास्ते नेविगेट करता हूँ, आई टेक प्राइड इन दैट, बट उस मोमेंट में आई एम चूजिंग टू let the chaos ज़ाहिरी तौर पे devour me, but I trust you and I let go. And suddenly there is silence and stillness in Muzammil. There's suddenly this peace. है chaos इर्द गिर्द, और but मुजम्मिल जैसे खामोश हो गया है. अब खामोश बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मुजम्मिल खामोश होता है बट अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है. अब अंदर से भी खामोश है, बाहर से भी खामोश है. And this peace, and then this Muzammil, and Muzammil can breathe again. अच्छा, let's go a little deeper. So now this एक part है, सेल्फ का ही एक पार्ट, जैसे हम कहते हैं कि साइकी के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, लाइक वी ऑल हैव सब पर्सनैलिटीज़. आई सब्सक्राइब टू दैट आइडिया. तो एक पार्ट आता है जो कहता है जो डोमिनेंट पर्सनैलिटी है मुजम्मिल की, उसको एड्रेस करता है, कहता है एवरीथिंग इज़ गोना बी ओके, everything is gonna be okay, everything is gonna be okay. And ये जो पार्ट है, because sometimes हम अपने आप को ये बोलते हैं everything is gonna be okay, but we don't believe it. ये जो पार्ट है जो ये बोल रहा है, इसकी नेचर ऐसी है कि ये मुजम्मिल की जो एडल्ट सेल्फ है, जब ये सुनती है इससे, मुजम्मिल को फील होता है कि दिस पार्ट नोज़ what he's saying. मतलब उसके कहने में ही एक ऐसी रीअश्योरेंस है और एक ऐसा सपोर्ट है जो फील होता है मुजम्मिल को. मुजम्मिल कहता है एवरीथिंग इज़ गोना बी ओके. और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मुजम्मिल हैज़ दिस टेंडेंसी जिसमें लाइक ही लव्स पीपल सो मच कि जो उसके इमीडिएट लव्ड वंस होते हैं ना, लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक इन्वेस्टमेंट सी हो जाती है. जैसे कि अगर मुजम्मिल ट्रबल में है तो जो उसके इमीडिएट लव्ड वंस होंगे जिनको वो चाहता है, जो इसने रिलेशनशिप्स मुजम्मिल कल्टिवेट करता है, वो जैसे वो भी उस पेन को उसी तरह फील करेंगे जो मुजम्मिल की पेन है. मुजम्मिल उनकी पेन को उस तरह फील करेगा जैसे मेरी पेन है, बहुत ज़्यादा. जैसे कि ना इससे हम कहते हैं एनमेशमेंट कैन टेंड टू बी अनहेल्दी एज वेल, बट इश्क इटसेल्फ इज़ इन्वेस्टमेंट, उसमें वननेस है. तो अब ये है कि ऐसा लगता है कि जैसे ये जो डायनामिक है, जो एक शिफ्ट आया है इसमें, ये रिफ्लेक्ट होता है. अब अगेन अनकॉन्शियस चाह रहा है कि हम रिलेशनशिप्स पे थोड़ा हाईलाइट करें कि ये रिलेशनशिप्स में ऐसे रिफ्लेक्ट होता है कि समटाइम्स जब केओस होता था और मुजम्मिल पैनिक कर रहा होता था, जो मुजम्मिल के लेट्स से कोई लव्ड वंस हैं जो बहुत करीबी लोग हैं, तो वो मुजम्मिल को जो पैनिक करते देखते थे तो उनको पता चलता था कि हाँ केओस है, बट उन्हें होता था कि मुजम्मिल निकाल लेगा हमें इसमें से, मुजम्मिल विल टेक केयर ऑफ़ इट. लेकिन उनको भी पैनिक फ़ील होता था कि अच्छा पैनिक में. अब जब पैनिक या केओस है और मुजम्मिल जो है कह रहा है चिल, अब जो लव्ड वन है उसके अंदर वो एंग्जाइटी ट्रांसफ़र होगी या हो रही है. ठीक है, लाइक मुजम्मिल कुछ करो, मुजम्मिल क्या कर रहे हो, लाइक तुम क्यों. इट्स ऑलमोस्ट लाइक you choosing to let go or be more comfortable with yourself is now pushing them to deal with their own demons. Like जैसे कि आप कैटलिस्ट बन गए कि अच्छा नहीं, it's almost like your presence is inviting them to have a little bit of faith as well. क्योंकि it's almost like आपके अंदर like it seems like there were times when you and your loved ones
were able to find peace in suffering together. एंड देयर वाज वो बॉन्ड है ना, वो बॉन्ड होता है कि हम रिलेशनल बॉन्ड है. अब यहाँ पे लाइक मुझे नहीं पता मुजम्मिल जो है दिस पर्सन से कि मुझे नहीं पता मुजम्मिल क्या फील कर रहा है, कहाँ है ये. तो वो फिर लाइक कि फिर मुजम्मिल संभाल लेगा. अब लाइक आर वी ऑन आवर ओन, क्या मुझे करना है, मतलब क्या है सीन. तो एक जैसे कि दिस शिफ्ट दैट हैज़ हैपेंड इन यू, दिस कैन probably or is probably making your immediate loved ones feel a sense of separation from you. Like, कहाँ हो तुम, किधर हो, like वापस आ जाओ ना, like कहाँ हो. And you're saying everything's gonna be okay. और you are vulnerable, like वो आपके loved ones अपने fears आप पे project कर सकते हैं इस phase में कि like लगता है सदमा ज़्यादा लग गया, कुछ ज़्यादा लाइक परेशान हो गया, ये तो खामोश हो गया, ये पता नहीं ये कह रहा है लेकिन कोई मसला है. जबकि आपका जो एक्सपीरियंशियल ट्रूथ है वो बिल्कुल डिफरेंट है. तो आई थिंक अब आपकी प्रेजेंस जो है इटसेल्फ है वो एक जेंटल कैटलिस्ट का कह लो रोल प्ले कर रही है कि दूसरों को भी इन्वाइट कर रही है टू डील विद देयर ओन डिस्कम्फर्ट्स जो कि सरफेस पे आ रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ दैट. ऑलराइट, लेट्स गो लिटिल डीपर. हमें अनकॉन्शियस बता देगा जब इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब हो जाएगा. तो अभी जवाब चल रहा है तो हम जा रहे हैं आगे. एक घूंट पानी की बस पिएगा. अच्छा जी, माइंड क्लियर. एक दो डीप ब्रेथ्स आंखें बंद करके बस, और अवेयरनेस हार्ट में ही माइंड क्लियर. ओके, नाउ द अनकॉन्शियस इज़ ट्राइंग टू हाईलाइट योर एम्पैथी. आपके अंदर जो फैकल्टी है एम्पैथी की बहुत हाई है, और इट सीम्स लाइक हर इंसान अपनी उस फैकल्टी को डिफरेंटली चैनलाइज करता है. कि आप शायद कोई इंसान होगा जो दूसरे का दर्द महसूस करेगा और वो ख़ुद दर्द में चला जाएगा और फिर वो उससे बेड से भी नहीं उठा जाएगा बिकॉज वो पेन में ही होगा, दूसरे की पेन में. बट आप सीम्स लाइक आपकी डिस्पोजिशन ऐसी है कि जब आप किसी का दर्द देखते हैं तो आप कहते हैं कि व्हाट कैन आई डू, पानी लेके आओ, ये करो. लाइक यू आर अ डूअर. व्हेन यू सी समवन, व्हेन यू कनेक्ट विद समवन, योर एम्पैथी इनवाइट्स यू टू टेक एक्शन. एंड इट सीम्स लाइक whatever journey you've been on in life and जिस तरह के भी आपके experiences हुए हैं, जिस तरह के भी लोगों से आपने interact किया है, जैसे कि लाइफ आपको एक ऐसे पाथ पे लेके लाइफ ने आपको रखा है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पेन से आप कनेक्ट करते गए. मतलब कि जैसे हम वो कहते हैं ना, आजकल वो एक दफ़ा जो रोगन के पॉडकास्ट देख रहा था वो कह रहा था कि मे बी वी आर नॉट मेंट टू नो सो मच अबाउट सो मेनी पीपल. लाइक शायद हमें एक महल्ले के लोगों तक ही महदूद रहना था. हमारा एवोल्यूशन के ज़रिए हमारा नर्वस सिस्टम रेडी नहीं है सारी दुनिया की तकलीफ़ों को हर वक्त रियल टाइम में. बट इट सीम्स लाइक फॉर व्हाटएवर रीज़न नज़र आ रहा है कि आई कैन फील इट कि आप करते गए और वो बढ़ता गया. लाइक इसकी भी पेन, इसकी भी, और वो आप कहीं ना कहीं उस पेन को, आपकी जो विल पावर है वो आपको कहती थी कि हाँ मैंने जो मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा. मतलब यू नेवर सेड कि ओ ये बहुत ज़्यादा हो रहा है मैं बैक लाइक नहीं जाते रहते. अभी जो एक शिफ्ट आया है इसमें एक पार्ट हल्का सा एक नया पार्ट आपकी सेल्फ का आया है जो कह रहा है कि मुजम्मिल, व्हाट इफ़ द वर्ल्ड इज़ एग्जैक्टली व्हाट इट्स सपोज्ड टू बी. एंड और क्योंकि ये जो मुजम्मिल है ये बहुत रैशनल है, जो डोमिनेंट पर्सनालिटी है, और वो कहता है उसके पास हमेशा रीजंस होते हैं लाइक ये बट ये. वो कह रहा है कि मुजम्मिल, व्हाट इफ़ द वर्ल्ड इज़ एग्जैक्टली सपोज्ड टू बी, एंड दैट पार्ट इज़ंट इंटरेस्टेड इन ट्राइंग टू कन्विंस यू ऑफ दिस स्टेटमेंट दैट इट्स मेकिंग. इट्स जस्ट आस्किंग यू टू सिट विद दैट अ लिटिल. कि मुजम्मिल ज़रा इस पर इसके साथ बैठते हैं, उसको बस रिफ्लेक्ट करते हैं कि व्हाट इफ़ द वर्ल्ड इज़ एग्जैक्टली वेयर इट्स सपोज्ड टू बी. एंड एज मुजम्मिल डज दैट, feel like you're in the process of doing that right now. So as you do that, then what happens? Let's see. So it seems like कि वो जो empathy थी, वो जो overly empathetic nature थी ना, वो अब इतना ज़्यादा content लोगों का emotional आ गया था, चीज़ों का, situations का, कि जो वो क्लैरिटी ऑफ थाट है ना, जजमेंट है, वो जजमेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी बिकॉज उसमें पैनिक और एंग्जाइटी आ रही थी. तो ये जो अप्रोच है कि लेट्स जस्ट सिट विद द आइडिया दैट आई एम एग्जैक्टली वेयर आई एम ऑल्सो एग्जैक्टली वेयर आई एम सपोज्ड टू बी, ये जो एक कामनेस जनरेट करती है आपके बीइंग में, दिस देन इज़ प्रोबेबली गोइंग टू अलाउ यू टू डू प्रोबेबली द सेम थिंग दैट यू बीन डूइंग बिफोर, बट डूइंग इट
while not taking on the pain of the other. Sometimes, most of the time, अगर आप भी पेन में हो और अगला भी पेन में है तो फिर पेन से निकालेगा कौन? अक्सर ये होता है कि यहाँ पे हमारे कल्चर में तो सैक्रिफाइस का कॉन्सेप्ट होता है ना, और वो ग्लोरिफिकेशन ऑफ सफरिंग है. परहैप्स वी आर नाउ लिविंग एट अ टाइम वेयर वी डोंट हैव टू सफ़र अननेसेसरीली. मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी में एक चीज़ होती है जैसे हम कहते हैं ट्रांसफरेंस. इस कॉन्टेक्स्ट में कि अक्सर औकात हम देखते थे ना, सुनते हैं कि जी कोई बुज़ुर्ग थे, उनकी प्रेजेंस में वो बंदा गया, कोई बात भी नहीं हुई और बस उन्होंने देखा और कोई शिफ्ट आ गया. तो लाइक उस सोहबत कोई एनर्जी कोई मतलब वो एग्जैजरेटेड होंगी एनेक्डोट्स, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ कि एक ट्रांसफरेंस होती है एक बंदे से दूसरे में. और आई एम श्योर आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, ऐसे लोग मिले होंगे आपको जिनकी प्रेजेंस में एक सुकून और एक वो. अच्छा, आपकी जो नेचुरल जो आपकी जो वाइब हमेशा से रही है वो वही थी. लाइक आप शायद उस पर में कॉन्शियस नहीं थे, बट लाइक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको लगता था कि मैं जो एक्शन ले रहा हूँ उससे मैं ज़्यादा लोगों को सुकून दे रहा हूँ. वो बिल्कुल वैलिड है, बट आई थिंक आपकी प्रेजेंस इटसेल्फ भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती थी, जिसके साथ बहुत अरसे बाद आई थिंक आपने उसको रिस्पेक्ट करना शुरू किया कि वो जो प्रेजेंस और वो जो अटेंशन. तो ऐसा लगता है कि जो आपके अंदर जो एक शिफ्ट आ रहा है, वो जो आपके अंदर जो शिफ्ट आ रहा है वो भी लोगों को कहीं ना कहीं एक डिफरेंट किस्म की हेल्प प्रोवाइड करेगा आपके एंड से. अब वो एक ऐसी हेल्प है जिसको मैं आर्टिकुलेट नहीं कर सकता, वो टैंजिबल नहीं है. बट इसकी सिंपल सी मिसाल ये होगी कि यार जब घर में एक बंदा खुश होता है तो वो खुशी फैलना शुरू होती है. तो वो इट सीम्स लाइक कि पहले एक वॉरियर वाला जो मोड था ना, वॉरियर और वॉरियर में प्राइड है और उस बहुत रोल डेवलप्ड है और वो सक्सेसफुल भी उसमें आप रहे हैं. बट हम यही कहते हैं कि हर चीज़ का एक टाइम होता है. एक टाइम आता है वेयर द सेम रोल दैट हैज़ ब्रॉट यू दिस फार एंड वाज वैलिड एंड फंक्शनल फॉर यू नाउ इज इन सर्विंग यू बेस्ड ऑन वेयर यू नाउ एट इन योर जर्नी. तो सीम्स लाइक अब जो वॉरियर वाला मोड में अगर आप एक्टिवली वॉरियर मोड में जाओगे, आपको हो सकता है ये लगे क्या कर रहा हूँ, लाइक समझ एक शायद नया मीनिंग ना आए उससे, लाइक और थोड़ी एग्जॉस्टन भी अब जल्दी हो, बिकॉज जो फिज़िकल बॉडी है आपकी वो भी थोड़ी डिप्लीटेड लग रही है. फिजिकल बॉडी की वजह से ऐसा लगता है कि आपकी फिजिकल बॉडी बहुत जल्दी बता देती है कि मुजम्मिल बस बर्नआउट. हाँ, पहले जैसे कि वो कहती थी कि नहीं हम मतलब घंटे सारे दिन जागेंगे, 2 दिन 3 दिन करेंगे, एंड द बॉडी एंड माइंड लाइक वन. बॉडी कहती नहीं बहुत ज़्यादा जैसे सेंसिटिव हो गई है बॉडी. एंड दैट्स जस्ट द बॉडीज़ वे ऑफ सेइंग कि आई नीड अ रीसेट ऑफ सॉर्ट्स. सो परहैप्स जो इनर काम है ये ज़्यादा आपको बेहतर केपेबल बनाएगा टू हेल्प अदर्स वाइल रिमेनिंग फोकस्ड. मतलब एक होता है कि कोई हम दूसरे की तकलीफ़ देख रहे हैं, बट उस तकलीफ़ में हम इतने ओवरवेल्म्ड हैं, हम उसकी हेल्प भी कर रहे हैं, बट हम पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं है उस हेल्प को करने के अमल में. वी लाइक कैसे मतलब हम उसकी सफ़रिंग भी साथ चल रहे हैं. अब इसमें जैसे कि एक रिफाइनमेंट, जैसे कि आई नो यूर इन पेन, ओके आई सी योर पेन, बट आई कैन जस्ट स्टेप बैक एंड आई नो व्हाट आई नीड टू डू नाउ. मुझे पता है मुझे करना क्या. आई कांट कम्प्लीटली टेक ऑन योर पेन, you know. So, and just also a little bit of this shift, which मतलब आई थिंक कन्वेंशनली ये जो मैं अभी बात बोलने लगा हूँ, पता नहीं इसको कैसे हम आई डोंट थिंक इसको इस बात को इतना ज़्यादा अच्छा समझा जाता है. बट एक शिफ्ट ये आ रहा है कि पहला वाला जो मुजम्मिल है, वेदर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, वो ये कर रहा है कि अगर दूसरा पेन में है तो मुझे भी भूखा रहना है, अगर वो भूखा है तो मुझे भी भूखा रहना है, फिर ही इंसाफ है. अब मुजम्मिल कह रहा है कि मैं उसको खाना खिलाऊंगा, बट मैं अपने आप को भूखा शायद मुझे रखने की ज़रूरत नहीं है. मतलब अबंडेंस में मैं रह सकता हूँ. आई डोंट हैव टू फील गिल्टी अबाउट माई अबंडेंस बिकॉज समवन एल्स इज़ इन लैक. आई हैव वो ये जो सेल्फ है ये कह रही है मुजम्मिल, what if there is a reason why that abundance has been given to you? Why not be curious about discovering that reason as opposed to being like नहीं मैं तो deserve नहीं करता. Why are you the one that's deciding कि मैं क्या deserve करता हूँ या क्या नहीं deserve करता? You know, let's just be curious. Let's work with what we have.
रादर देन लाइक अब पहले वाला जो मुजम्मिल था वो दुनिया को हील भी करता था बट अपने आप को कोड़े भी मारता था, क्रूसीफाई भी करता था, जस्ट टू फील लाइक कि देखा क्योंकि मैंने भी अपने आप को मारा बिकॉज वो पेन में था। ये जो मुजम्मिल आया ये कह रहा है कि यार क्रूसीफाई करना बस रोक देते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर देखते हैं क्या होता है। तो अब आते हैं हम उस सवाल पे। दिस वाज जो ये साइड नोट्स आ रहे थे शुरू में, अब आपका जो सवाल कि व्हाट पार्ट्स ऑफ मी इज़ नरिशिंग दैट फियर। इट सीम्स लाइक बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ और सेंस ऑफ सेल्फ वैल्यू जो है वो रूटेड रही है कि मैं ज़िम्मेदारियाँ कितने अच्छे से निभा सकता हूँ और रेलिश करता हूँ मैं इस पर। लाइक मैं ज़िम्मेदारियों को, वो जो पुरानी सेल्फ है, लाइक आई रेलिश रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दो और मैं वो ज़िम्मेदारी पूरी करूँगा। और फीडबैक लूप ये कि एवरीवनस वैलिडेट है मुजम्मिल, थैंक यू, लाइक क्या बात हमारी, लाइक जैसे कि सेंस ऑफ वैल्यू बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रही है कि आई डिज़र्व व्हाट आई डिज़र्व बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल एंड आई नो दैट। एंड नाउ सो देयर वाज ऑलवेज दिस पार्ट, अब वो जो मैंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कैसे करना है उसका वो जो रोड मैप होता था, आई वॉज ऑलवेज इन टच विद इट। आई ऑलवेज हैड अ स्ट्रक्चर इन प्लेस जो मुझे बताता था कि ये जिम्मेदारी हैं और ये कैसे मैंने पूरी करनी है। अब वो स्ट्रक्चर चला गया है, स्ट्रक्चर चला गया है और अब मुझे एंग्जाइटी हो रही है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ कैसे पूरी करूँगा। अब सो द इमेज दैट आई वाज सीइंग, मैं आपका बेटे का नाम पूछा है इसलिए मैं बताता हूँ। सो like everybody else, but I was just feeling the love that you have for your family, and whatever version of responsibilities that you have in your head regarding your family, कि this is my responsibility, जो भी आपकी हैं, there's so much fear around, I can't fail you, I can't fail you, I have to provide, उसकी form different हो सकती हैं, but like I can't fail you, and you're very alone in that process. It's a very lonely place, and it's almost like you don't even want them to share this with you, and they're like nahi, and in a way that's a bit selfish on that part, because I think there's ease in allowing them to like just share a bit of it, कि this is my struggle, because वो आई थिंक ईगो को इतनी वैलिडेशन मिली है कि प्रॉब्लम सारा मैं अपने पे लेता था और मैं डिलीवर करता था और लोग कहते थे ठीक है फिर। तो अब जैसे जो आपने कहा ना कि what part of me is nourishing that fear, the part that I don't want to fail my family, that's the primary part here. I am not at all noticing primary level पे, जो कि मैं शायद जब ये करने से पहले मैं सोच रहा था कि पता नहीं शायद आएगा कि करियर या दुनिया को बेटर प्लेस ये वो वगैरह, एंड more so फैमिली से भी ज़्यादा मुझे आपका बेटा जो है ना, लाइक हिज लाइक आई कुड सी योर सन एंड आई कुड सी यू लुकिंग एट हिम, आई कुड सी हाउ यू आर सो इन्वेस्टेड इन, लाइक everyone, like every parent, but like it's almost like you're so attuned to the challenges that he can face in this life, you're so attuned to those challenges in real time and actively trying to prevent them or solve them beforehand. You're just being too hard on yourself. And do not be surprised that your son grows up and it's like यार ये आपको करने की ज़रूरत भी नहीं थी, like you know, like the kind of son, like the kind of person he grows up to be, he could connect and empathize with your struggle and be like, I can see how you were trying so hard to make it happen, and even if it didn't, it's okay. But you are carrying this subconscious belief that वो नहीं समझ पाएगा और वो शायद उसका काम भी नहीं है, मुझे बस वो देना है उसको, you know, उसका काम नहीं है. I have to just be the best parent, and it's almost like you're not ready. It's almost like this phase is actually trying to open you up to a reality, and it's a very interesting one. कि और ये मैं energetic level पे, let's say you are trying to fulfill your responsibilities and you are trying to be the best father that you want to be, and there is value in that, and on some level the mind could be like कि मैं एक बाप हूँ और मैं बाप बन रहा हूँ,
but energetically your son is more of a healer for you than you are for him right now. He's actually taken on a bigger responsibility for you than you have for yourself, just by his existence, just what happens to you when you look at him, the space that you're talking about, और जो shift, जो inner peace और ये सब चीज़ें आप discuss कर रहे हैं, he as an individual himself, he's also like a portal that can take you to that place. Everything's gonna be okay. So बट कहीं ना कहीं आप शायद उससे वो चीज़ रिसीव नहीं कर सकते उस तरह से, बिकॉज उसको जब उसको देखते हैं तो फ़ौरन ये भी आता है ना, बट मैंने इसके लिए क्या क्या करना है, तो वो उस पोर्टल को भी आप उस तरह से एंजॉय नहीं कर पा रहे. बट वो कह रहा है कि आई एम हेयर फॉर यू, सर मैं आपके लिए आया हूँ, और आपके लिए नहीं मैंने आपके लिए चिल करे हैं, मैं आपके लिए आया हूँ. अब मैंने आपके लिए चीज़ें आसान बनानी है, और मैंने आपके लिए चीज़ें आसान बनानी है ताकि आप मेरे लिए चीज़ें आसान बना सकें. तो suddenly the unconscious is highlighting some qualities of your son. Would you be open to hearing them? So your क्या कहते हैं, whatever source of wisdom that we have tapped into through yourself, वो हमें कुछ आपकी son के बारे में, बेटे के बारे में कुछ qualities highlight करना चाह रही है. तो हम उस पर जाते हैं. मुझे थोड़ी सी बीच में थॉट आया कि मैंने ज़्यादा अंग्रेज़ी में तो नहीं बात कर ली. आई डोंट नो, आई थिंक मेरी ऑडियंस, क्योंकि मैं खुद बहुत बर्गर हूँ, तो इस वजह से वो दे वेरी यूज्ड टू. अच्छा मैं बस द फैक्ट दैट आई एम माइंडफुल नाउ, तो मैं जितना भी मैं नेचुरली की कोशिश कर रहा हूँ उसको करने की. अच्छा तो अच्छा जी, अब कुछ बातें अगेन बैक को थोड़ा सा स्ट्रेट रखिएगा, और एक दो लंबे सांस, और अवेयरनेस को बैक इन द हार्ट, और माइंड क्लियर. ओके, एक घूंट पानी की दोबारा चाहिए हमें. सो इट सीम्स लाइक राफाएल, उसकी जो नेचुरल प्रीडिस्पोजिशन है, जैसे आपकी नेचुरल प्रीडिस्पोजिशन है माइंड में ज़्यादा, हार्ट में कम, उसमें मैं तो उसमें कोई जजमेंट नहीं करता. मतलब आई नो ईस्टर्न और वेस्टर्न में चलता रहता है, बट हर चीज़ का एक रोल होता है. बट राफाएल की जो नेचुरल प्रीडिस्पोजिशन है वो हार्ट है, और इट सीम्स लाइक कि उसकी हार्ट इसलिए है बिकॉज उसकी माँ की जो नेचुरल प्रीडिस्पोजिशन है वो हार्ट है, हार्ट और वो भी हार्ट. तो इट सीम्स लाइक बट जो उसकी माँ है वो एक लैक ऑफ सेफ्टी ज़रूर, एक लैक ऑफ सेफ्टी का वुंड कैरी करती है. बट ये जो राफाएल है इसके पास वो हार्ट भी होगा, और आपकी पेरेंटिंग और फादरहुड के साथ वो एक सेंस ऑफ सेफ्टी, जो कि एक हार्ट वाले इंसान को अर्ली एज में सेफ्टी मिल जाए ना, तो फिर वो जो हार्ट के जो रिवॉर्ड्स हैं या जो गिफ्ट्स हैं वो सही बाहर आते हैं. अक्सर औकात जो हार्ट वाले होते हैं बिकॉज वो सेंसिटिव होते हैं, तो उनको अक्सर देखा गया कि हम इंक्लूडिंग मी, हम सेफ्टी नहीं मिलती और वो एक और ही डिमेंशन शुरू हो जाती है. तो जैसे कि वो कह रहा है कि आई एम नॉट हेयर, मेरा जैसे मेरे फादर का शायद जर्नी का पर्पज़ ये हो कि पहले मैंने ख़ुद को जानना है और फिर मैंने जो भी करना है. मैंने ख़ुद को बहुत जल्दी जान लेना है बिकॉज ऑफ दिस इन्वायरमेंट दैट माई पेरेंट्स हैव क्रिएटेड फॉर मी. सेल्फ डिस्कवरी विल प्रॉब्ली नॉट बी द थिंग, वो बहुत शायद नेचुरली आ जाए. काम करना है, एंड काम करने के लिए और किस तरह से काम करना है, क्या काम करना है. आपने इतनी ज़्यादा जो हार्डशिप से गुज़र के आपको वो जो क्लैरिटी ऑफ थॉट आता था, आपके बेटे में जैसे वो स्टार्टिंग पॉइंट से है, शुरू से आपके बेटे में वो क्वालिटी, मतलब जैसे कि ये मैं आपकी बेटे की कुछ पर्सनैलिटी आपको बता रहा हूँ कि लाइक आई सी हिम हैविंग दोज क्वालिटीज़, क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड आई नो व्हाट टू डू. तो वो जो एक सेंस ऑफ सेफ्टी, वैलिडेशन, अश्योरेंस, सेल्फ वर्थ, कुछ ऐसे फंडामेंटल्स जो आई थिंक आइडियली अगर हम पेरेंट्स के तौर पे बच्चों को दे दें तो हम उनकी इंडिविजुअलिटी को ऐसे बाहर आती है. सीम्स लाइक बोथ ऑफ यू आर डूइंग दैट रियली वेल. दैट्स अगेन समथिंग दैट्स कमिंग थ्रू योर एनर्जी. और अगेन मैं इसको ऐसे मत समझें कि ये कोई ऐसी थॉट है जो आपने सोची होगी तो मैं मिरर कर रहा हूँ. जब हम इसमें हायर सेल्फ का वर्ड यूज़ करते हैं, अनकॉन्शियस का, हम इसमें ये होता है कि व्हेन यू आर कनेक्टेड विद समवन, जैसे अगर आप बेटे के थ्रू आपके बेटे के साथ कनेक्टेड हैं तो आपका अनकॉन्शियस उसकी भी कुछ डीपर ट्रूथ्स को अब्जॉर्ब कर लेता है.
तो मैं वहाँ से ये बातें आ रही हैं। तो अच्छा, तो अब फाइनली इस कंक्लूड करते हैं इस सवाल के आंसर को। आई कॉन्ट फेल एज अ प्रोवाइडर, एज अ फादर, एज अ पेरेंट। ये एक प्राइमरी फियर है जो जो एक प्राइमरी कंसर्न है जो इस फियर को अनसर्टनिटी के फेस में नरिश कर रहा है। दैट्स माई आंसर। Interesting. I think the first thing that I would like to talk about, the very start you mentioned this concept that is popularized over the internet as ego death. और उसमें आपने जब early on बात की थी तो you talked about तवक्कल, you talked about the inherent submission to God. I think that's the word and the theme that I would use. It's very fascinating because day before yesterday, I actually recorded a podcast with Talha Ahad. I believe that should be out. मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि 20 सितंबर के बाद वो रिलीज़ करें, बट वो जो एपिसोड रिकॉर्ड हुई थी उसमें तकरीबन 20 मिनट मैंने ये बात की है. सो इट्स फैसिनेटिंग कि आपने वो बात की कि रिसेंट हुआ, बिकॉज 20 मिनट्स आप ही सुनिएगा जब वो आएगी. सो आई स्पोक टू हिम, आई सेड रिसेंटली आई हैव हैड दिस सॉर्ट ऑफ अ स्पिरिचुअल आई डोंट नो व्हाट आई कॉल इट, कि रीबर्थ है या क्या है, और उसकी जो कोर थीम है वो सबमिशन है, और मुझे ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ सबमिशन का हुआ है, और मैंने उसमें वर्ड यूज़ किया तवक्कल का. And that's not a very common word that people use. so that was interesting. And yeah, because I was connected to I mean, you. there were incredible, there were a lot of other interesting moments. I don't want to overhype it. But I'll start with that because I've been fairly interested in that recently. जो आपने एक बड़ी मज़ेदार बात बोली, और I know a lot of people who might be listening in might have similar thoughts and feelings as well, and I did for the longest time. जो डिस्कनेक्ट है ना फ्रॉम ऑफ व्हाट यू थिंक, एक तो होता है ना कि हाउ यू रिएक्ट, दैट इज़ फिजिकल, प्योरली फिजिकल, तो उसमें तो डिस्टेंस हो सकता है बिटवीन हाउ यू रिएक्ट एंड हाउ यू थिंक, बट द डिस्टेंस बिटवीन हाउ यू थिंक एंड एक्चुअल में व्हाट्स देयर, most people don't recognize, don't even know that such a distance or difference exists. And for me, if you'd spoken to me 2 months ago, I would have said, बिल्कुल, मैं भी तभी ही कहता बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बट मुझे उसकी रियलाइजेशन ही नहीं थी कि भाई तुम्हारे अंदर से तुम्हें ये बिलीफ है नहीं. इट्स ओनली रिसेंटली दैट आई हैव अंडरस्टूड कि हम प्रैक्टिकली वी से ऑल द राइट थिंग्स, वी थिंक ऑल द राइट थिंग्स, बट स्टिल वेयर एंक्शियस एंड स्टिल वेयर, और वो फिज़िकली मैनिफेस्ट हो रही होती है आपके मसल्स में, और वो सारा कि जब आप को ट्रूली तवक्कल आता है तो आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होती है, आपका माइंड, आपका वो, इट्स ऑल ऑफ दैट इज़ कनेक्टेड. व्हाट वुड यू से, how does tawakkul come about? Because वही वाली बात है कि मेरे लिए it was just random. Is it spirituality? Is it connecting with your own soul? Is it going back? And I started doing a bunch of things. I started looking back. मेरा एक ये problem था बहुत ज़्यादा कि I would put things in boxes and I would put them aside and I would consciously not think about them. So I would not think about the past and look towards the future. And more recently I've started connecting with my past. I've started going through old photos. I've started thinking about some of those incidents that I didn't even realize gave me pain in a very subconscious way. And even though theoretically it is painful, I've started to feel liberated in ways I didn't even know existed. What are your thoughts? एक तो चीज़ ये कि right now I am connected with you, right? So like we're doing sort of a reading. So उसमें I can't just switch and like tell you what my thoughts are about that. I can, but I think my thoughts would not be very interesting on the matter. I think I am a very ignorant and unwise person myself, and I would say
I come across as being profound only in relation to the individual that I'm channeling, I'm mirroring. So what sounds amazing is only because that is there in you. Right. Oftentimes when I'm doing a session with someone, I will be sharing or mirroring things that while I'm doing it, I'll be like, wow, यार इतनी amazing बात है. But I won't be thinking about that in my isolation. In my isolation, I'd be thinking about my own things. वैसे मैं एक comment इस पे करूँगा कि फ्रॉइड था, उसने ये कैथार्सिस ऐसे ही डिस्कवर किया था. उसने कहा था कि लोगों को जब मैं उनके ही डिस्कम्फर्ट के बारे में अवेयर कराता हूँ और वो उस डिस्कम्फर्ट को इन द प्रेजेंस ऑफ अ विटनेस, ये बड़ा ज़रूरी है. आई फील इन द प्रेजेंस ऑफ अ विटनेस. अकेले में डिफरेंट होता है. समटाइम्स यू योर सेल्फ बिकम दैट विटनेस फॉर योर सेल्फ, बट वो भी एक सर्टन वक्त के बाद आता है. तो उस पेन के अंदर जब दोबारा जाते हैं तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक वो डिस्चार्ज हो जाती है या कुछ इंटीग्रेशन हो जाती है. तो वो कैथार्सिस उसने उसका नाम दिया था एज फार एज आई नो. तो बट ये जो आपकी बात है कि हाउ डज तवक्कुल कम अबाउट, आई डोंट नो. आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ इट, बट आई डोंट थिंक दैट बी एज इंटरेस्टिंग. आई थिंक अभी जिस फ्लो में हम चल रहे थे, ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें आती कि जैसे आपने एक सवाल अपने बारे में ऐसे फ्रेम किया और इतनी अमेजिंग हमने आधे घंटे की कॉन्वर्सेशन कर ली. Why don't you ask another question, another such question? चलिए, I'll ask you another such question अपने बारे में. I'm not. I think one of the major themes that I've identified about myself, and I've tried to reconcile with it. I've tried to deal with it. And I've seen a lot of other people, they're able to go through things in life, उनको tension ही नहीं होती. There's a lot of, I give a lot of weight to what people think of me. उसका, and it's very interesting because people who know me very closely, they think I'm very stoic. Stoic, can you elaborate on that? So they're like, oh, इसको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता. Okay. कुछ भी कह दें इसको तो ये तो जो है ना बस emotionless है और he's this rock की तरह ये होता है. But a lot of it's fascinating. A lot of the themes that you very rightfully pointed out, a lot of them exist. A lot of the pressures exist because I've read a stranger pass a comment about me on Twitter that shouldn't theoretically mean anything. Particularly at a time when there would be 1,000 people saying one thing and then 2 people saying something else. Why do those 2 comments mean so much more? Even if I'm just like, मैं ignore कर रहा हूँ, नहीं ये तो logical दिमाग कह रहा है कि ये नहीं है, देखो focus on the 1,000, but subconsciously वो 2 अटक गए. And I feel like that has really hampered my growth, because when you are trying to do something and constantly you're thinking कि नहीं यार लेकिन this is like this and this is like that and इसके तो ये नुकसानात हैं और उसके तो वो नुकसानात हैं. and आजकल तो in the modern world everything has a negative, potentially negative connotation, right? And so if you stop living, that's not very healthy. One has to be responsible, but like you mentioned early on, maybe we weren't designed evolutionarily to hear so many opinions about ourselves, and maybe the reference of responsibility beyond, एक होता है ना आपकी फैमिली आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी डिमांड करती है, फ्रेंड्स करते हैं, that's normal. But being in the public eye, there is a certain level of responsibility that by design constantly seeps through every commentary that is being made about you. And no matter how much I ignore it, the weight of that responsibility more often than not stops me from doing a lot of things that I otherwise would have ventured into. How would you see that? So you shared quite a few things, but as you know that जब हमने start किया था तो एक solution oriented सवाल आपने पूछा था कि what part of me is nourishing that fear. तो अब आपको मैं चाहूँगा आप एक solution oriented इसमें आपको मैं इसमें आपको एक direction देता हूँ. How do I get rid of what people think about me? Thank you.
अच्छा, हमें एक और पेज मिल सकता है ये? कैन यू फ्लिप इट अराउंड मे बी? हाँ, इसके बाद शायद हमें चाहिए हो, बिकॉज हाँ, वो well, असल में रियल टाइम में आपकी उस वाली जो यहाँ डिटेल्स लिखी हैं उनके साथ मुझे टैली करना है, तो वो मुझे बार बार ओके, मैं ये वाला ले कैन टेक दिस. ओके, हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ व्हाट पीपल थिंक ऑफ मी? सही. सो अब हम देखेंगे आपके अंदर का वाइज मैन क्या कहता है. हाँ, वैसे न्यू एज में हायर सेल्फ का वर्ड बड़ा आजकल कॉमन चल रहा है. साइकोलॉजी में अनकॉन्शियस का चलता है, और यहाँ पे शायद हमजाद कहते हैं उसको. आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया. मुझे, बट मैं ये कहता हूँ कि लेबल में क्या रखा है, एक सोर्स है. इन्फॉर्मेशन अगर यूटिलिटी दे रही है तो फिर लेबल में क्या रखा है. हाँ, तो खैर, बट हम यहाँ लेबल्स में इतना चार्ज हो जाते हैं. अच्छा, ओके. सो माइंड क्लियर, अवेयरनेस. हार्ट में 1 या 2 स्लो डीप ब्रेथ लीजिएगा. ओके, फोकस हार्ट पे, माइंड क्लियर. जब आपने ये पॉडकास्ट शुरू किया था ना, एनर्जेटिकली या साइकोलॉजिकली सिर्फ मैं और आप थे यहाँ पे, और कोई नहीं था. अभी पिछले 5-6 मिनट में आपकी सारे जो फैंस हैं, जो ऑडियंस हैं, वो आगे बीच में. और वो, मैं ये नहीं कह रहा दिस वाज रॉन्ग, बट मैं ये कह रहा हूँ कि वो बीच में आए. इस सवाल को पूछने में भी आपने उस एनर्जी को इनवाइट किया, और उसके कॉन्सिक्वेंस में एक अनईज़ जनरेट हुई नर्वस सिस्टम में, एक ट्रिगर हुई. और वो पार्ट एक सेपरेट पार्ट, क्योंकि पार्ट्स तो हमेशा एग्जिस्ट करते हैं. हम यही कहते हैं साइकोलॉजी में, यूंगियन साइकोलॉजी में ये कहते हैं कि शैडो जो है वो जितना ज़्यादा हम इवॉल्व होते जाएंगे, हमारा एक पैरेलल शैडो भी बनेगा. इंटीग्रेशन नाम है. शैडो वाले जो पार्ट्स हैं वो आपको बस कंट्रोल ना कर रहे हो, उनकी एग्जिस्टेंस. एक्सप्लेन दैट अगेन, जस्ट द लास्ट कपल ऑफ लाइंस. मैं बताता हूँ. जैसे कि ट्रॉमा, हम कहते हैं ना ट्रॉमा हील करना है, तो शायद या कोई, लेट्स से मुझे गुस्सा बहुत आता है, आई फील लाइक दैट्स अ वेरी अगली पार्ट. में एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इसको हम शैडो देंगे. शैडो का मतलब हर वो पार्ट जिससे मैं डिसकनेक्टेड हूँ, या जिसे मैं जज करता हूँ, ठीक है, या मैं इसे सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरा गुस्सा मेरा शैडो बन गया. वो बहुत पॉजिटिव क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं, शैडो नेगेटिव नहीं है सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में. तो मुझे गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा ये मेरा शैडो है. तो अब क्योंकि मैं इसको सप्रेस कर रहा हूँ, जितना मैं इसको सप्रेस करूँगा उतना वो शैडो जो है वो पावर उसकी बढ़ेगी. तो होगा ये कि इन मोमेंट्स ऑफ वल्नरेबिलिटी, जब मैं कॉन्शियसली सप्रेस नहीं कर सकता, वो शैडो हाईजैक करेगा मेरी कॉन्शियस सेल्फ को, और वो काम करवाएगा मेरे से. वो कहेगा, अच्छा तू समझता यू आर सो बेटर देन मी, यू सप्रेस मी, आई एम गोना बी सो मच वर्स देन यू थिंक आई एम. और फिर आप रिग्रेट करोगे कि व्हाट डिड आई डू. सो इंटीग्रेशन का नाम, इंटीग्रेशन कहते ही इस चीज़ को है कि आप उन पार्ट्स के साथ जिन्हें आप जज करते हो, जिन्हें आप डिसलाइक करते हो, उनके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करने की नीयत करो. आप एक इंक्वायरी और एक इन्वेस्टिगेशन में जाओ, एक एक्सप्लोरेशन फेज़ में जाओ कि इस पार्ट की ओरिजिन क्या है. बिकॉज पार्ट तो वैलिड है, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब कुछ एक्सपीरियंसेस हुए थे जिसकी वजह से गुस्सा आया. अब वो ओरिजिन्स में जाओ. एक जर्नी है, लिटरली एक जर्नी है. एक दिन में तो नहीं होगी ना, हफ्तों में होगी, शायद महीने लग जाएँ, शायद साल लग जाएँ. आप उसकी ओरिजिन्स में जाओ. उस ओरिजिन्स में जब आप जाओगे, फिर आपने एम्पथाइज करना है. यूल एंड अप बेसिकली, इसके 4-5 स्टेप्स हैं. कोई भी अगर आप मतलब लिटरली चैट जीपीटी पे भी बंदा लिख देना कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ इंटीग्रेटिंग द शैडो थ्रू इन यूंगियन साइकोलॉजी, वो 4-5 स्टेप्स आ जाते हैं कि आप ओरिजिन में जाते हो, फिर मेडिटेटिव स्पेस में, फिर रिफ्लेक्ट करते हो उन ओरिजिन्स पे, फिर आप डायलॉग करते हो उस पार्ट के साथ और कहते हो आई अंडरस्टैंड व्हाई यू आर देयर. इस पर्सपेक्टिव में ये माना जाता है कि ये पार्ट जो हाईजैक कर रहा है हमें, ये क्यों हाईजैक कर रहा है, इसको एक्चुअली सिर्फ अटेंशन चाहिए. वो अटेंशन अगर हम इसे देना शुरू कर दें तो ये बीच में हाईजैक होकर लोगों से नहीं वो अटेंशन सीख करेगा. तो अगर हम इस पार्ट के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के स्टेप्स, थोड़ा सा भी स्टेप ले लें, तो वो पार्ट हाईजैक नहीं फिर हमें करेगा. वो वहाँ रहेगा बट इट वोंट टेक ओवर अस. सो ये एक बात मैं कह रहा था, ये दिस इज़ व्हाट आई मेंट बाय शैडो. तो लाइक इन एन आइडियल वर्ल्ड, the magnitude of me getting bothered by what other people think of me, वो magnitude कम होना शुरू होगा. That's how we would measure growth there, rather than कि वो cease to exist, because शायद उसकी जो existence है ना, वो भी एक evolutionary चीज़ है.
बायोलॉजिकल है, डेंजर था, सर्वाइव करना था, तो मुझे पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है अगले कमरे में। बट वो जो एम्पलीट्यूड है उसका वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, मैग्नीट्यूड बढ़ गया है, तो उसको कम मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं हम, सही है। तो यहाँ हम ज़्यादा दे जाते हैं, लेट्स सी बेस्ड ऑन वेयर यूर एट। अच्छा एक बड़ा हैरान वाली बात है, आप ये सवाल पूछ रहे हो और मुझे लग रहा है आपने इसमें इतनी ग्रोथ कर, इसमें ज़्यादा ग्रोथ हो गई इस एरिया में। मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि जो आपका अनकॉन्शियस बता रहा है या हायर सेल्फ जो बता रही है वो ये कि एक लेवल पे, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ एन आइडियल स्टेट, बट ये इंटरेस्टिंग है कि यू एक्चुअली मेड पीस विद द फैक्ट दैट पीपल आर गोना थिंक ऑफ मी एज एन एसोल। इस वजह से कि आपने वर्स जो आपको लोग जिस वर्स इमेज में लोग आपको देख सकते हैं उसके साथ आपने एक्चुअली पीस बना लिया है। एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है, कंग्रेचुलेशन, क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये एक्सपीरियंशियल लेवल पे, जैसे कि अब जैसे कि अगर वो कोई नेगेटिविटी आ रही है मेरे बारे में, लाइक पर्सनल अटैक कोई हो रहा है ना, पर्सनल अटैक, मुझे आप फ्लिंच तो नहीं करते नज़र आ रहे। जो अभी वर्जन मेरे सामने जो बैठा है वो पढ़ रहा है और वो स्माइल कर रहा है। वो पर्सनल अटैक्स जहाँ तक हैं वहाँ पे तो आप अफेक्ट नहीं हो रहे। दैट्स व्हाट द एनर्जी इज शोइंग अस। अब ज़रा आगे चलते हैं, बिकॉज सिर्फ पर्सनल लेवल पे नहीं चीज़ें होती। अच्छा, पहले तो ये एक्नॉलेज कर लेंगे, ये जो अभी ये शिफ्ट है ये बहुत बड़ी बात है। ये समटाइम्स हम हीलिंग में ना, क्योंकि हम उस जर्नी पे होते हैं तो हम अंडरमाइन कर देते हैं अपने अचीवमेंट्स को। I think you should actually be very proud of yourself for this, and I think it's just मतलब ये in a way again मैं कह रहा था ना, जैसे हमारी प्रेजेंस दूसरों को गिफ्ट देती है, ये एक गिफ्ट है जब आपकी प्रेजेंस लोगों को देगी। मतलब आपकी सोबत में जो भी इंसान बैठेगा, कि माइक्रो लेवल पे ही सही, बट कहीं ना कहीं आपके साथ वक्त गुजार के हर उस इंसान को थोड़ा सा शायद उसके लिए बेहतर हो जाए, अगर वो रिसेप्टिव है, थोड़ा सा बेहतर हो जाए लोगों की डिसलाइक से कैसे डील करना है, आपकी एनर्जी में रिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा, आगे चलते हैं। अब एक हम आपके पार्ट को डिस्कवर करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं, ये बहुत पुराना है, बहुत बचपन का है, और इसमें बहुत ज़्यादा अनीज़ है इस पार्ट में, और इसमें बहुत ज़्यादा, और ये सुन नहीं रहा किसी की बात। ये एक जुमला है जो ये बोल रहा है, बट ये किसी की बात सुन नहीं रहा। मतलब मैं, मुझे ये बात बोलता है और मैं उसे कहता हूँ, मैंने कहा असल में ना, वो कह रहे नहीं मुझे मेरे इस मसले का हल, वो बात ये है कि वो कह रहा है आई वॉन्ट टू बी अंडरस्टूड। एक मुजम्मिल है छोटा, मैं चाहता हूँ मैं जो कह रहा हूँ वो समझ जाए, और मैं कह रहा हूँ नहीं असल में देखो ना, नहीं मैं चाहता हूँ कि मुझे आई वॉन्ट टू बी अंडरस्टूड, बिकॉज ये मुजम्मिल इतना सेंसिटिव है कि जब ये बोल रहा होता है कुछ, तो अगला इसको कैसे परसीव कर रहा है, इसकी बात को वो रियल टाइम में अगले के थॉट प्रोसेस से चेक कर सकता है कि ये बात नहीं समझ रहा मेरी, और उसमें इतना गुस्सा आता है। और ये मुजम्मिल अगले को कहने लगता, जैसे शायद ये कह देता था कि यार तुम मेरी बात नहीं समझ रहे, वो कहता है यार मैंने तो अभी बोला ही नहीं है, नहीं समझ रहे ना, और इसको शायद कहते होंगे तो कॉकी है, तो पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, बट वो फील कर लेता था वो मुजम्मिल। और उसमें ये एक वूंड है नॉट बीइंग अंडरस्टूड। ये एक बहुत प्राइमरी वूंड है, और इस पर इतना काम नहीं हुआ हुआ। इट्स फाइन, दैट्स अ जर्नी। वो हीलिंग समटाइम्स लोग मीन्स टू एन एंड बना लेते हैं, जबकि मैंने तो जर्नी से ये सीखा है हीलिंग इज़ ए एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। और बिकॉज हम ये भी एक ईगो ट्रिक खेलती है कि अगर मैं हील हो जाऊँगा तो मैं वर्दी बन जाऊँगा क्या। लोग हील अक्सर कर रहे हैं उन चीज़ों को हासिल करने के लिए जो उन्हें वैसे नहीं मिल रही थी। तो खैर, बट एक पॉइंट आता है कि जब वो प्रोसेस ही मतलब अमेजिंग हो जाती चीज़। तो खैर, अब ये वूंड है कि आई मिसअंडरस्टूड, और ये बहुत ग्रीफ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ग्रीफ है। और अब ये जो पार्ट है, अब देखें ना, कोई पार्ट जिस स्टेट में होता है उस स्टेट के साथ ही उस स्टेट को वो स्टेट डिटरमिन करती है कि हम उसके साथ क्या कर सकते हैं। अब ये जो मुजम्मिल है तो कमरे के कोने में बैठा है, ग्रीफ में है। अब अगर मैं आऊँ और मैं कहूँ देखो मुजम्मिल, मैं क्या लेट्स जस्ट लेट मी नॉट हेल्प यू बट लाइक मे बी देयर इज़ अ वे आउट, लाइक जाओ लेट मी अलोन। वो कमरे में किसी को आने नहीं देता, और वो बस अपने ग्रीफ को लेके बैठा है, बट उसमें एक डिके हो रहा है। दैट्स लाइक समथिंग, कुछ चीज़ रॉट कर रही होती है, देयर इज़ अ डिके देयर। मतलब वो जो ग्रीफ है इट्स अ बिट क्रिपलिंग। कुछ मोमेंट्स में वो जब रिफ्रेश होगा या कोई रियल टाइम इवेंट उसको ट्रिगर करेगा, वो ना एक
एक पार्ट, ये कॉन्शियस सेल्फ इतना मतलब उस पार्ट में अभी भी वो है कि पोटेंसी के वो आपको ये करने में मजबूर कर सकती है कि यार छोड़ो यार, क्या कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सब छोड़ दो, नाइलिज्म। वो यहाँ मतलब नाइलिज्म, आप यहाँ से जाते हैं नाइलिज्म में, यू आर वल्नरेबल टू दैट मोमेंट्री, शायद दिनों तक तो लाइक क्या करें, व्हाट्स द पॉइंट, व्हाट्स द पॉइंट, बस यही बोला व्हाट्स द पॉइंट। क्योंकि वो कह रहा है, क्योंकि वो ग्रीफ जो है, वो जो पार्ट है जो ग्रीव कर रहा है कि मैं मिसअंडरस्टूड, वो इतना ओवरवेल्म्ड है उस इमोशन के साथ दैट सिंपली पहले तो उसको रिलीज़ करना है। वो इमोशन पहला स्टेप ही उसका है कि वो अभी तक अपने ग्रीव भी प्रॉपरली नहीं कर सका। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि, क्योंकि ग्रीव लोग डिफरेंटली करते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ कॉन्वर्सेशन मैं एक वर्ड बोलूँगा, जैसे कि उस पार्ट को और इस वर्जन ऑफ मुजम्मिल को, दोनों को आंसू बहाने हैं इस चीज़ को ग्रीव करने में। बिकॉज जैसे कि एक लिम्बो में रहा है वो पार्ट, और ये वाला वर्जन भी, जैसे कि आई मिसअंडरस्टूड, बट वो वॉरियर जो था ना, वो एफर्ट नहीं रोक रहा था, एफर्ट फिर भी मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं मिसअंडरस्टूड हूँ, मैं एफर्ट फिर भी करूँगा, ना इधर ना उधर, तो वो जो एक मिडल में है। तो अब जो है वो एक्चुअली हमें उसके साथ एम्पैथाइज करने के लिए कि आई मिसअंडरस्टूड, इस चीज़ को हटा दें कि सोल्यूशन को भूल दें, कोई सोल्यूशन नहीं है, बस लेट्स जस्ट सिट विद द फैक्ट कि आई मिसअंडरस्टूड, और आओ मिल के इसे ग्रीव करें। क्योंकि इसमें इस पार्ट में अकेलापन इतना ज़्यादा है कि बहुत सारी चीज़ें आप अकेले रह के शायद प्रोसेस कर लेते होंगे, लेकिन ये चीज़ आप अकेले अगर इसको प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे ना कि आई मिसअंडरस्टूड, आप बहुत ज़्यादा एक डार्क प्लेस में चले जाएंगे या जाते होंगे, और फिर शायद आपकी कॉन्शियस सेल्फ में एक एप्रीहेंशन आ गई है कि अच्छा यार ये अभी इसको रहते रहते इसको पड़े रहो, बाकी कमरे साफ़ करते हैं, इसको एंड में जाएंगे। लेकिन सबसे पहला स्टेप जो है, और ये बहुत सारी और चीज़ों में आसानियाँ पैदा करेगा, बट ये एक वूंड है जिसके साथ अभी तो बस उस वूंड की एक्नॉलेजमेंट और उसको बस एक ब्रीदिंग स्पेस मिले, ये ज़रूरी है। आई मिसअंडरस्टूड का ये जो वूंड है, ये प्रॉपरली प्रोसेस ही नहीं हुआ, ये ग्रीव ही नहीं हुआ, पहली चीज़ तो ये है। अच्छा, मैं देखना चाह रहा हूँ कि पर्सनल अटैक्स के लेवल पे तो वो पीस आ गया है, तो फिर आगे क्या चीज़ है, ये जब अगर ग्रीफ प्रोसेस हो गया तो फिर क्या होगा। मैं जस्ट देख रहा हूँ, अभी कुछ कहिएगा ना, बस जस्ट वेट, मैं एक पॉइंट पे हूँ। आई नो आपके पास सवाल है, बस ये थोड़ा सा रह गया इन्फॉर्मेशन। अवेयरनेस हार्ट में ही रखिएगा, माइंड क्लियर। ओके, थोड़ा सा मेटाफिजिकल टाइप लगेगा सोल्यूशन है, बट अभी जो, बिकॉज यही चीज़ को शायद अगर आप एक डिफरेंट फेज़ में होंगे तो डील करने का एक डिफरेंट तरीका होगा, बट इस वक्त इस ये जो प्रॉब्लम है कि हाउ डू आई गेट रिड ऑफ व्हाट पीपल थिंक ऑफ मी, इसका जो रियल टाइम इस वक्त जो सोल्यूशन आ रहा है वो ये है कि एक्चुअली मुजम्मिल, इस सवाल को ज़रा साइड पे रखो। यू नीड टू बिकम रियली वेल वर्स्ड विद हाउ डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, because you hold a lot of contempt for yourself that you have not resolved. That should be the starting place. अब ये एक generic solution नहीं मैं आपको बता रहा, because हमारे काम में हम generic solutions नहीं बताते, it's just based on what we're getting in real time. So इस particular moment में इस सवाल का जो solution है ना, वो एक escape बन जाएगा, और वो एक journey होगी कि I'm trying to get rid of it, but वो थोड़े दिनों के लिए फिर वापस आ जाएगी, थोड़े दिनों के लिए इस वक्त, और ये जर्नी ऑलरेडी शुरू हुई भी है, बट यही है कि व्हाट डू यू रियली थिंक ऑफ योर सेल्फ, एंड यू हैव कहीं ना कहीं अलाउड दैट कंटेम्प्ट टू बी देयर। लाइक हाँ ठीक है, ऐसी होती है ज़िंदगी। वो हम कह रहे हैं ना, क्रूसीफाई। पहले अपने आप के अंदर जो कंटेम्प्ट है अपने लिए, उसको रिजॉल्व करें। चाहे उस रेजोल्यूशन के बाद कुछ ऐसे हिस्से हों सेल्फ के जो आपको शायद फिर भी पसंद ना हो, बट वो जो एक वॉरफेयर है, या वो जो कंटेम्प्ट है, वो जो एक रिजेंटमेंट है, और वो जो एक पनिशमेंट है, बिकॉज आप में एक टेंडेंसी है टू रियली पनिश योर सेल्फ रियली बिग टाइम फॉर थिंग्स दैट आर, फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव ये तो इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है, लाइक नो मारो, पता नहीं क्यों स्ट्रिक्ट बहुत हैं अपने साथ, तो आप अपने आप को ब्रीदिंग स्पेस नहीं देते। तो इस वक्त आपको ज़रूरत ज़्यादा है कि अपनी वो जो अपना गला आप खुद दबाते हैं, पहले उससे आप आज़ाद हो जाए। ये इसका वक्त अभी आएगा बाद में। सो सॉरी, ये मेरा अभी के लिए आ रहा है इस सवाल को लेकर। Right. If I were to ask you, and I'm not sure if that
generally is part of the energy reading process. And I'm not necessarily asking कि यार मुझे आप बता दें कि परसों क्या होगा और फ्यूचर की मुझे predictions ना दें. But a sense of, because I think for a good few years I had a very clear sense of what I wanted to, the direction that I wanted to go. Aspirational value थी. ठीक है. Most recently, if someone would ask me, you know, what are you doing and why are you doing what you're doing, I'd probably say I'd probably give them an answer, but in actuality, I wouldn't really know. And it's interesting because historically, if I were to not know where I'm headed, it would destroy me. Like, I am someone who loves to control and utilize data and calculate and calculate and calculate. But recently, because I've again begun to let go, I've also just I find it difficult to make any form of aspiration for the future. And obviously future जो है वो what this has allowed for me is that now if you were to plot lines on a graph, तो वो largely बड़ी मोटी line थी और उसके जो उसकी जो divergence थी वो बड़ी छोटी थी. But अब suddenly now there are a bunch of different lines that I can see, and I'm pretty calm in terms of knowing कि यार ये line इधर भी जा सकती है, ये line उधर भी जा सकती है. बट उसी के साथ साथ क्योंकि मैं हमेशा बाय डिज़ाइन डाइवर्जेंस को किल करता था एंड आई वुड स्टिक टू अ सर्टन डायरेक्शन, तो एक एंग्जाइटी भी ड्राइव होती है कि यू हैव नो आइडिया व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स. एंड देन व्हेन you're constantly प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज़, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वन वे और द अदर, तो आप कंफ्यूज रहते हैं कॉन्स्टेंटली कि यार अच्छा अब आई डोंट नो, मैं ज़्यादा सोच नहीं रहा. पहले तो मैं सोचता होता था, मेरे लिए मैट्रिक्स बड़ा आसान था. सो बेस्ड ऑन द एनर्जी, what do you see as more conducive in the future? I don't know if that question makes sense. बिल्कुल sense है. नहीं, be as ambitious as you want to in your questions. Yeah, because don't underestimate source. तो बहुत wise है जो जहाँ से हम information ले रहे हैं. Right. So where, if the world is your oyster and you know you choose any option, what sort of option would make more sense for the sort of person that I have become, less than what the sort of person that I always thought I was? आपने इतना माशाल्लाह से उसको इतना अच्छे से सवाल पूछा, लेकिन अगर आप सिर्फ ये कहते ना, एंड आई नो मैं खुद इसका बिलीवर नहीं हूँ, मैंने आपको ये बताना एग्जैक्टली नहीं था, बट आप ये लिटरली ये भी पूछते ना मुझे क्या करना चाहिए तो वो भी काफ़ी था. तो मैंने कहा आपने और व्यूअर ने कहना है कि यार ये इतनी फलसफे की बात के ऊपर आखिर में इसके दिमाग में चला ये है कि यार मुझे भाई ये बता, घंटा तो तूने टाइम से आएगी, मुझे बता मैंने करना क्या. तो ये तो लाइफ, दिस इज व्हाट लाइफ एक्चुअली इज, दैट we can have certain parts of us that are highly developed, and then we can have certain parts that are innocent, anxious, scared. That's who we are. But हम लोग identify कर लेते हैं एक part के साथ कि this is who I am, और फिर हम, तो मैं चाहता हूँ कि हम इसको ऐसे करें just playfully कि मुझे क्या करना चाहिए, इसको ज़रा ये रखते हैं. Right. Because वो सवाल जो है ना उसमें editing बहुत किया आपने. वो जो organic impulse थी ना, because अब audience भी आ गई है कमरे में, पहले मैं और आप थे, जो कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाय द वे आपका एक आप अपनी एक ख़ास सेगमेंट है, एक आपका एक हेल्दी रिलेशनशिप है आपके व्यूअर के साथ, मतलब आपकी एक कम्युनिटी है, और ये वैसे एक नेमत है. मतलब शायद ये भी तो पॉसिबल था कि आप एक अबिस के साथ कनेक्टेड होते, जस्ट कर रहे हैं, बट वो एक टैंजिबल रिलेशनशिप है आपका एक अपनी कम्युनिटी के साथ, और वो that's a blessing I would say, because I can see how it provides you with warmth. So anyways, and kudos to those people, मतलब वो आपको प्यार करते हैं. So अच्छा,
तो अगर हम प्लेफुली इसको ऐसे रखें कि मुझे क्या करना चाहिए, लेट्स सी व्हाट कम्स। मुझे एलन वॉट्स की एक बात याद आई थी। एलन वॉट्स कहता है कि हम लोग इतना सोचते हैं लेकिन जब मोमेंट आता है हम इंस्टिंक्ट पे एक्ट करते हैं अपने आप को तसल्ली दे देते हैं कि देखो हमने इतना किया था, बट जब मोमेंट आता है आप इंस्टिंक्ट पे एक्ट करते हो। तो खैर, तो अब एक मतलब कह सकता है कि यार इंस्टिंक्ट को इतना प्रोग्राम कर दो कि वो, बट लेट्स सी अच्छा, और हम इसको करियर में रखें, करियर के डोमेन में रखें। आइडियली यस। हाँ मतलब अभी मतलब आइडियली नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ हमारे पास ऑप्शन है, बट वो हमें सेपरेटली करने होंगे डिफरेंट एरियाज़ की। अभी हम लेट्स स्टार्ट विद करियर। हाँ, क्या करना चाहिए करियर में? ओके, अच्छा 2 घूंट पानी की। अच्छा, आप पानी लगता है ज़िंदगी में कम पीते हैं बिकॉज आपकी बॉडी इतनी हाइड्रेटेड नहीं है, या पानी रिटेन नहीं होता इतना। मैं एक वैसे बात बता रहा हूँ, बॉडी आपकी इतनी हाइड्रेटेड नहीं है। कनेक्टेड हूँ तो फील हो जाता है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ताकि वो मेरे लिए आसान हो कनेक्ट करना। तो अच्छा, बैक आइडली स्ट्रेट रखिएगा और माइंड क्लियर और अवेयरनेस हार्ट में। और ओके, 1-2 लंबे डीप ब्रेथ्स, आंखें बंद करके, एंड जस्ट रिलैक्स, जस्ट लेट गो अ लिटिल बिट। You're not here, just be a fly on the wall and just be present and yet not be present, like just let go. Okay, एक डिसीजन है जो अंदर पैदा हुआ है, एक डिसीजन है जो आपने, यू मेड अ डिसीजन that I can see, that I feel that you've made a decision, that what I'm picking on is के recent times में, मतलब इतना भी recent नहीं, but like के बिकॉज पास्ट में अगर आपको कोई पूछे कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आप बोलते यही जो मैं अभी बोलने लगा हूँ, बट रियलिटी वाज डिफरेंट। मैं बताता हूँ कैसे। अभी जैसे कि कुछ अर्सा पहले एक फ़ैसला ये हुआ कि मेरी फैमिली, मेरे रिलेशनशिप्स जो है ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कनेक्शंस हैं, जो मैं वक्त गुजारता हूँ लोगों के साथ, रिश्ते और रिलेशनशिप्स, एक आ रही है थीम, रिलेशनशिप्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं रिलेशनशिप्स को अपने डिसइंटीग्रेट नहीं होने देना चाहता। पास्ट का जो मुजम्मिल है शायद वो ये बोलता यही है, बट उसके रिलेशनशिप्स डिसइंटीग्रेट हो रहे थे और वो एनेबल कर रहा था उनकी डिसइंटीग्रेशन को, बिकॉज उसका फोकस जो है वो दूसरी चीज़ों पे था। हम उसको जज नहीं कर रहे उस मुजम्मिल को, बट मुझे जस्ट हाईलाइटिंग। बट ये जो मुजम्मिल है जो मेरे सामने बैठा है, ये बहुत कॉग्निजेंट है कि मैंने, मतलब जो पहले वाला मुजम्मिल था वो हर लाइक उसका काम उसकी ज़िंदगी बन सकता था या बन जाता था, एंड एवरीथिंग एल्स वो सेकेंडरी। और उसके जो लव वंस हैं वो उसको सेल्फिश और रिजेंट करते कि लाइक क्या, बट वो उसको मैनिपुलेट करना भी आता था लव वंस को, कि वो एक अच्छी चीज़ करके किस तरह चलाना है अगले को। कि मैं बस आई नो, मुझे इतना पता, लोगों यू आर वेरी गुड एट आई थिंक अंडरस्टैंडिंग पीपल, कि आप उनको खुश रख लेते थे, बट वो रिजेंटमेंट फिर भी रहती थी, बट उनको आप मना लेते थे। बट ये जो मुजम्मिल है, शायद, अब मुझे नहीं पता क्यों, बट शायद इसने फील किया कि मुझे जो मीनिंग मिलता है रिश्तों में वो इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं नहीं उसको, मुझे और वहाँ से वो वाला मीनिंग नहीं मिल रहा। और चीज़ों से भी मैंने बहुत सारी चीज़ें अब देख ली हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि एक डिसीजन अंदर लिया गया है कि मैंने अपने एम्बिशंस को इतना नहीं बढ़ने देना। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, अब एक फ़िल्टर है जो देखता है कि कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम ये मेरा लेगा। तो ये एक डिसीजन तो ऑलरेडी हो गया, एक शिफ्ट आ गया इसमें आपकी अप्रोच में जो नज़र आ रहा है हमें। अच्छा, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि बिकॉज़ हमें लगता है कि वी थिंक आवर थाट्स, यू नो, अच्छी थॉट आती है हम कहते हैं मैंने सोचा, जब बुरी आती है मुझे ये बुरा थॉट आया, ओनरशिप ले लेते हैं अच्छी चीज़ों की। तो हमें लगता है कि हम वी नो वी आर चूजिंग व्हाट वी वांट, बट समटाइम्स, ऑफन टाइम्स ये होता है कि हमारे अंदर जो भी द सम ऑफ व्हाट वी आर, लाइक जब हम कहते हैं कि यार एक ऑर्गेनिक फीलिंग आई, वो ऑर्गेनिक फीलिंग कैसे बनती है? अब जो ऑर्गेनिक पुल होता है वो जैसा मर्जी हो वो हमें पुल तो कर लेगा, बिकॉज इट्स ऑर्गेनिक एंड फील्स गुड, बिकॉज इट्स ऑर्गेनिक, बिकॉज इट्स अ नेचुरल बाय प्रोडक्ट ऑफ हु वी आर एट दैट मोमेंट। मुझे लगता है जो एक ऑर्गेनिक इम्पल्स है, ये जो एक ऑर्गेनिक कॉलिंग है, एक अम्ब्रेला थीम जो है इस वक्त लाइफ में, ये जो लाइक जिसको एक्सप्लोर करने में अगर हम ये भूल जाएं कि मुजम्मिल, लाइक अगर हम वर्ल्डली टर्म्स में कि पैसा बनाना है और ये सब चीज़ों को अगर हटा लें, तो एक मुजम्मिल
जो ऑर्गेनिक इम्पल्स है वो ये है कि हाउ कैन आई मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर माई सन। अगेन ये बात बेटे तक आती है घूम के। ये एक मुजम्मिल बैठा है और वो एक सवाल अपने आप से पूछता है, क्यूरियोसिटी उसमें आती है, हाउ कैन आई मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर माई सन। और उसमें एक तजस्सुस पैदा होता है कि मैंने इस चीज़ को एक्सप्लोर करना है। अब वो हर एरिया में जाएगा, एक्सप्लोर कर रहा है, और जहाँ जहाँ भी वो जा रहा है ये जो उसका प्रेमिस अगर ये है कि मैंने अपने बेटे के लिए दुनिया कैसे बेहतर बनानी है, अगर जब उसका प्रेमिस ये होता है, जिस भी तरफ वो जा रहा है उसे इन्जॉय कर रहा है, उसमें एक मीनिंग है। तो ये वाली जो एक बहुत सिंपल सी एक इंटेंशन है, इसमें बहुत ज़्यादा मीनिंग नज़र आ रहा है, इसमें एक कंटेंटमेंट नज़र आ रही है मुजम्मिल के लिए। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ये। दूसरा, आई थिंक सो इट सीम्स लाइक, एंड दिस आई एम गोना रैप अप दिस क्वेश्चन नाउ विद दिस, कि आपका एक आप में एक डिटैचमेंट पैदा हुई है रिजल्ट से लेटली। मतलब बहुत ज़्यादा जैसे आप अपने ऊपर ये प्रेशर लेते थे कि जो मैं चाहता हूँ वो एग्जीक्यूट भी हो। तवक्कुल में ये है ना कि मैं लाइक अच्छा ठीक है मैंने अपनी एफ़र्ट की और फिर तो आप में ये चीज़ आई है कि अगर रिज़ल्ट वैसा ना भी हुआ जैसा मैं चाहता हूँ, इट्स ओके, फिर देखेंगे। तो ये जो एक इतनी ज़्यादा एनर्जी इस चीज़ में जा रही थी ना, इससे जो एक डिटैचमेंट हुई है ना, तो इससे भी एक पीस आया इसमें। तो अब आप कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है आप जो भी करेंगे आप शायद उसे आप इंजॉय ज़्यादा करें, शायद वो ज़्यादा काम इतना ना हो बट आप उसे इंजॉय करेंगे। पहले जैसे कि आप उस जो ग्राइंड था उसमें से मीनिंग निकालते थे, बट अब ग्राइंड में आपको दर्द होगा, मीनिंग नहीं आएगा। तो अब शायद आप इंजॉय ज़्यादा करें जो आप कर रहे हैं, बिकॉज़ आप शायद आपकी जो इंटेंशन है जो भी आप करते हैं वो इंटेंशन आपके लिए वो आपको नरिश करे बहुत ज़्यादा, एज अपोज टू द रिज़ल्ट of that thing. So I think this is where you're at. I was obviously never going to tell you okay, what you're supposed to do, but I needed you to say that because that was उसने हमें यहाँ लेके जाना था। मैं तो कभी भी ऐसी स्पेसेस में नहीं बताता और ना मैं बता सकता हूँ। तो ये तो होता ही एक सब्जेक्टिव और एक सेल्फ डिस्कवरी का प्रोसेस है, बट इट सीम्स लाइक दिस इज़ वेयर यूर एट एंड यूर इन अ गुड प्लेस, लाइक you're at a place where you are more likely to make balanced decisions with regards to your career now than the past version of you. Past वाला बहुत impatient था और उसके अंदर capacity भी थी छोटे टाइम में बहुत ऊपर जाने की, लेकिन उसका कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था रिलेशनशिप्स। वो अक्सर नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ जॉर्डन पीटरसन, बट वो कभी बोलते थे ना कि जी वो जो इतने अमेजिंग लोग हैं वो इसलिए अमेजिंग है बिकॉज उन्होंने सैक्रिफाइस किया ये वो वगैरह, और वो कर लेते हैं। डजंट सीम लाइक यूर दैट पर्सन हु वांट्स टू गो टू द टॉप वाइल रिलेशन, लाइक आप कोर आपकी भी हार्ट है बस वो एक खैर, तो वो है कि मैं बस अपने प्यारों के साथ खुश भी रहना चाहता हूँ और फिर मैंने जहाँ भी मैंने जाना है, अब एक अटैचमेंट थोड़ी सी कम हुई है डेस्टिनेशन के साथ, तो इट्स नॉट अ बैड प्लेस बिकॉज आप ये वही ना, फ़नी बात ये है कि आप एक लेवल पे आप सुकून में भी है बट आपका माइंड कह रहा है भाई तू पागल है, तू सुकून में क्यों है, तुझे नहीं सुकून में होना चाहिए, तुझे पता ही नहीं तू कहाँ जा रहा है, तू पगला हो गया है तो बट यही है। Interesting. We're at the 1 hour 14 minute mark. बारिंग दरमियान में चीज़ें अप एंड डाउन हो गई तो हमारा वो घंटे का सेशन जो एसेंशली कंप्लीट हो गया। I don't believe I have any more questions, but can we then zoom out a bit and then have a slightly wider conversation? Yes, definitely. Again, I'd be curious to see. We did this because I just feel like everybody thinks. When I think मैंने ये इस वजह से किया था because I really wanted to, which selfishly I would wanted to find answers. बंदा बैठा है मुफ्त में आके मेरे सेशन मिल रहा है तो why not? But also philosophically speaking, I think the opportunity that we had here where you could have insight on what it's like, I'd be curious to see the comments because I know what was being said, and so the impact was very different for someone who's directly connected to what you were saying, right? I don't know कि third person के साथ क्या होगा, that'd be interesting to see. I don't know either. But just to sort of summarize,
I mean, I'm a very cynical person. वो आपने ऑफ कैमरा पहले बोला था कि you started your life with trying to reject everything. Generally ना बंदा जो पढ़ लिखे थोड़ी जल्दी थोड़ी ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो उनको लगता है कि हम बहुत ही सियाने हैं, तो वो पहले ही फुर्सत में यही कहते हैं कि ये सब चूना लग रहा है. I don't know, I can't think of what he could have done, what sort of data that he could have crawled, where he could have answered some fundamental sort of philosophical thoughts and questions. And I mean, I'm really excited to show my wife this conversation, because I know that she is one person जिसका mind उतना blow होगा, because we've spoken about these things very recently. There's certain realizations that we've had, and we know that nobody else would be able to have them. So it's incredible. And so I really want to understand. I don't know what the question would be, but how does this work? स्कूप एक दे देता हूँ. वो जब मैंने कह रहा था ना loved ones जब मैं कह रहा था ना, Right. तो उसमें आपकी वाइफ ही प्राइमरीली नज़र आ रही थी. बट खैर उस टाइम में लव्ड वन का वर्ड ज़्यादा बेहतर लग रहा था. खैर I don't know. I'll tell you, and I will give myself now the permission to be as absurd as I might sound, but as cheesy as it might sound. And I've never really given myself the permission to be as honest, and like I have never really given myself the permission to own my truth. I've always tried to, मतलब चीज़ें हुई मेरे साथ तो मुझे लगा कि मुझे ये क्या होता है, मतलब कोई और ही बता दे मुझे, because मैं क्या बोलूँ. I'll tell you what it is in my experience, and I don't know how it works, but I'll tell you. I just love people. Like in this way, like I tried to love you. I mean, I know love कितना like contaminated word, and I'll unpack it, but literally my whole life when I was a little child, ज़िंदगी में मैं यही कहता था, मैंने एक ही चीज़ है जिसके लिए मेहनत की है, वो प्यार है. और मैंने किसी और चीज़ के लिए मेहनत ही नहीं की, मुझे बस प्यार चाहिए था. ज़ाहिर है उसकी रीज़न्स होंगी, कमी ये वो जो भी, बट आई वांटेड लव. थोड़ी सी मैंने आई थिंक 1-2 साल पढ़ाई में मेहनत की यूनिवर्सिटी के एक टाइम पे बस, और उसके अलावा बस प्यार मिल जाए, सोलमेट ये वो, बट एसेंशियली लव. और ये जो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी थी, इसने मेरे अंदर एक डायमेंशन ओपन की, जिसने, जो मुझे लगता था कि मैं सिर्फ एक इंसान को प्यार कर सकता हूँ, मुझे मुख्तलिफ़ लोगों को प्यार करने के लिए काबिल बनाया. एंड मैं बस I open my heart to you, and in this moment we were one. You know, basically I was you, as weird as it sounds. I think there are certain people out there in the world who are doing something similar. I haven't learned it from them, but I know one person, Teal Swan, एक spiritual teacher है, वो I think उसका एक काम है completion process के नाम से. उसमें वो लिटरली, अभी तो हम आपके पार्ट्स को मिरर कर रहे थे ना, एक होता है जिसमें आप इनैक्ट भी कर सकते हो, और आई हैव डन दैट इन वेरी इंटेंस मोमेंट्स, जहाँ पे किसी का रोना इतना फंसा हो, मैंने उसके लिए रोया उस मोमेंट में. एंड बट वो मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, बट वो बस वो कुछ मोमेंट्स थे जहाँ ऐसे हुआ है, रेयरली, बट बड़ा इंटेंस होता है. तो आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स. ऑल आई वुड से इज़ दैट there is a part of me that is genuinely enjoys connecting with others, genuinely. And it makes me so happy. It's the best feeling in the world. I do this for a living, and I am like, मुझे मेरे घर वाले और फैमिली से ही कहती रहती हैं, बेटा और क्या करोगे. You studied political science and media studies, कोई नौकरी कर लो, CSS कर लो, कुछ कर लो. एंड देयर आर डेज व्हेन आई एम लाइक, बिकॉज वो कहते हैं कि यार अगर तुम दिन में 2 सेशंस करते हो, आई ओनली डू 2 सेशंस अ डे, तो बाकी सारे घंटे क्या करते रहते हो, तो इसको फिल करो. एंड आई नो कि वो जो 2 घंटे का मैं काम करता हूँ ना, 3-4 घंटे उसको ही प्रोसेस करने में लग जाते हैं. इट टेक्स अ टोल ओवर यू, बट आई हैव मैनेज टू क्रिएट अ बैलेंस इन द लास्ट 4 years टू अ डिग्री. जैसे पहले मैं एक्सरसाइज नहीं करता था, इट टेक्स अ टोल ओवर यू, नाउ आई डू दैट एंड इट हेल्प्स. तो मुझे लगता था एक टाइम पे कि शायद मुझे इससे पैसा कमाना है, और मैं मतलब 5-6 हज़ार या 7 हज़ार लेके कितना पैसा कमा लूँगा. और मैं कोशिश भी की कि 5-6 सेशंस, बट इट जस्ट annihilated me. तो नहीं, तो I know that the nature of my work necessarily isn't probably designed to make me a lot of money, but
I just enjoy connecting with people, and I don't know how this works. I think I do believe that there is this thing called ESP, extrasensory perception. I think this is a form of that. But I feel that every person's this ESP manifests itself differently in different individuals based on their personality. मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि मेरे अंदर एक शेरलॉक भी है और मेरे अंदर एक मतलब देयर इज़ अ मिस्टिक इन मी एंड देयर इज़ अ क्रिटिकल थिंकर इन मी. मैंने अपनी जर्नी जो स्पिरिचुअल या ज़िंदगी की जो सफ़र है उसमें मैंने देखा है कि जो लोग बहुत स्पिरिचुअल होते थे वो बहुत स्पिरिचुअल होते थे और बस हर चीज़ को निगेट करते थे, और जो लोग बहुत रैशनल होते थे वो बहुत रैशनल होते थे. आई हैव फाउंड माई सेल्फ थ्रू माई एक्सपीरियंसेस इन लाइफ इन द मिडल. Like I've had deep connections with people who are very rational and deep connections with people very mystical. So I feel like I am someone who's trying to create a bridge between the psychological and the spiritual. Again, knowing that I know your word spiritual, but wo hai contested. But like the mystical or the metaphysical would be a better word. The psychological or the material and the metaphysical. I'm trying to create a bridge between it. So because I feel like now we're at a time where we're probably capable, like because I see a lot of people in that dilemma. मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो इस मिडल में ही होते हैं, and I think आप भी इस मोमेंट में तो आप मिडल में ही हैं, because आप के अंदर वो रैशनल पार्ट और वो सब चीज़ें हैं और आप फिर भी you're choosing to explore this. तो आई थिंक मे बी इस दौर का एक ये कोई है मतलब कि मिडल में रहना. मुझे ये बताएं कि हैव यू एक्सप्लोर्ड सूफीज़म जनरली? एब्सोल्युटली. अच्छा, मैं इसको लिंक करूँगा, ये थॉट है. आई डोंट वांट टू गेट इनटू द कन्वर्सेशन ऑफ सूफीज़म एंड व्हाट नॉट. वो फिर पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के ज़माने में आ जाता है. डोंट वांट टू गो देयर. बट one of the reasons why, so I personally I'm on a journey of trying to learn more about spirituality and वो सारा कुछ. But उसकी शादी कराना with being putting it out on public as well, वो एक major reason ये था कि I've been trying to analyze a lot of what's been happening in society, particularly our own. And there is a certain level of polarization that just fascinates me. There's a certain level of chaos in the society. There's no metric of education or class or sophistication that could define whether you are a rational person who sits in the middle and is a lot more calm. हर किस्म का बंदा हर फ्रिंज में कहीं ना कहीं फ्रिंज में एग्जिस्ट कर रहा है, वो चाहे रिलीजन हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे मोरालिटी हो, चाहे सो ऑन एंड सो फोर्थ. और जिसकी वजह से जो मेरा ओपिनियन ये है कि जो क्राइम बहुत ज़्यादा सोसाइटी में हो रहा है, वो उसकी लार्जली एक वजह ये है कि लोगों के अपने इतने ट्रॉमास हैं वन वे और द अदर कि we're in this endless cycle of transferring traumas across society. And so when I look at the polarization today, चाहे again political देख लें, left right की polarization देख लें, there is a lot of extremist view, not just in Pakistan, globally as well. तो वो मुझे generally ये feel हो रहा है कि a lot the world collectively is reconciling with a lot of the trauma of the past, and unfortunately nobody's out there first of all understanding that such trauma exists, that this is happening because there is a trauma, and be trying to fix that. And what I mean by that is I see a lot of aggression, and I've sometimes been a target of that aggression as well, and I've been able to understand really, sometimes immediately, sometimes after a while when I sort of look back, कि वो aggression मेरे पे नहीं निकला, वो aggression एक अलग चीज़ का निकला है जिस चीज़ के बारे में बात करने का मौका नहीं मिला और मैं एक टारगेट बना जी. या दूसरे लोग टारगेट बनते हैं.
एंड सो जो आपने ओरिजिनली बात की कि आई लव पीपल, और उससे फिर मुझे इस रीजन की सेंस बनी ऑफ हाउ ऑफ द रीजन वेयर सूफीज़म रियली सॉर्ट ऑफ नरिश्ड, और जो हिस्ट्री है हमारे रीजन की, और उसमें फिर मुझे ये एक सेंस आई कि डोंट यू थिंक हमारे लोगों को लाइक इफ़ एनीथिंग एल्स लाइक विल सॉल्व एवरीथिंग, बट हमारे लोगों को एक तो सबसे बेसिक चीज़ ये चाहिए कि यार कोई उनको हक करके बोले कि ब्रो आई लव यू, लाइक you know I know what you're going through and I feel you and I'm sorry that this happened, like I'm sorry you're going through all of this. Yes. I feel like everyone around them is just telling them why they suck. Just there's nobody who's just sitting with them empathetically understanding कि क्या उनकी ज़िंदगी के मसाइल हैं, telling them that they love them. Nobody is doing that because nobody has उनकी जिन्होंने करना है उनके लिए किसी ने नहीं किया. तो जब आप समटाइम्स आप ये करते भी जब हो, वो भी एक ईगो ट्रिप के लिए कर रहे हो, तो आप लाइक देखो मैं तुम्हारे लिए कितना कर रहा हूँ, बट आप जो जब आपने खुद अपने पेन के साथ वक्त गुजारा हो, तो फिर जब आप किसी को हक करते हैं तो वो हक सिर्फ आप उसको नहीं कर रहे, वो ख़ुद को भी कर रहे हैं. इट्स अ कलेक्टिव एक्सपीरियंस. अक्सर आप लोगों को देखेंगे जो अक्सर एक आर्केटाइप है कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा लविंग होते हैं, बट वो असल में बहुत अकेले होते हैं. वो भी एक साइकिल में है कि जी मेरा शायद काम ही है कि मैंने दूसरों को प्यार करना है और मुझे शायद कोई प्यार नहीं मिलेगा, और उसमें वो खुद अनहैप्पी होते हैं, और उनके प्यार में भी वो पोटेंसी नहीं होती. जो कि एक मतलब मुझे याद है कि अगेन एलन वॉट्स ने बोला था कि मैं जब कार्ल यूंग से एक दफ़ा मिला ना, तो कहता मैं जब किसी भी मिस्टेक या सूफ़ी या डिफरेंट मज़ाहिब के लोगों के पास जब जो भी उनके जो कह लो एनलाइटेंड सो कॉल्ड लोग होते थे, मैं उनके पास जब जाता था, अक्सर मुझे उन लोगों के पास जाके यही फ़ील होता था कि मैं छोटा हूँ, ये बड़े हैं. तो वो एक हायरार्की फ़ील होती थी. जब मैं कार्ल यूंग से मिला, मैं काफ़ी कार्ल यूंग का यू कुड सी कि मैं थोड़ा सा फ़ैन भी काफ़ी फ़ैन हुआ है मुझसे, बिकॉज आई थिंक वो भी यही इस सफ़र में था जिसमें मैं हूँ. तो वो कहते जब मैं कार्ल यूंग से मिला, मुझे ये फ़ील ही नहीं हुआ कि मतलब वो एक इतना एक आज़ादी थी उस स्पेस में जिसमें वो था, और जैसे कि उसके वजूद में वो नीड नहीं थी, उसको ज़रूरत नहीं थी कि वो बड़ा बने और मैं छोटा बनूं और फिर कुछ हो. हम दोनों ही उस स्पेस को इक्वली एंजॉय कर सकते थे, और वो एक फ्रीडम था. और मुझे लगा मतलब मैं उसको एज एन इक्वल मैंने देखा, लेकिन मुझे लगा वो सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल था उन सब लोगों में से. तो जो आपकी बात है वो बिल्कुल, हमें प्यार की ज़रूरत है. और मैं क्या कहते हैं, आई हैव बिन ग्रोइंग अप अ विक्टिम ऑफ दिस लविंग इम्पल्स दैट आई हैव हैड, लाइक प्यार प्यार प्यार. मुझे बड़ा मतलब सुनने को मिलता था कि क्या प्यार 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 लगाई हुई है. तो बट आई गेस जो आपकी फितरत होती है वो नहीं बदलती. तो मेरी तो फितरत यही थी, और आज मैं बस प्यार ही कर रहा हूँ. And that makes sense, right? Like if I were to look around, the reason why I say that is because we have a lot of these conversations, and अगर आप साइड से वो conversation सुन रहे हो ना, आपको कभी बार फील होता है कि जो दो लोग लड़ रहे हैं ना, ये एक ही बात कर रहे हैं सिर्फ जो है. अगर ये अपना 2 मिनट के लिए एग्रेशन साइड पे रखें, you both want the same thing. I know. And the fights that you have, the misunderstandings that you have, the blame game that you're putting on each other is it's so cosmetic, right? Like, can we clean this part up and really connect person to person? मैं एक पैराडॉक्स आपसे शेयर करता हूँ कि मुझे लगता है कि हमारे यहाँ लोग हैं जो बहुत सारे वैलिड जो मसले हैं हमारी सोसाइटी के वो हल कर रहे हैं, लेकिन और वो उसमें सक्सेसफुल भी हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मसलों को हल करने में. बट उनका भी तरीका जो है ना मसलों को हल करने में, वो ये है कि अनाइलेट करो अगले को, उड़ा दो, मतलब तुम ये हो, एंड ये कभी ख़त्म, दिस इज़ एंडलेस, ये हो ये ख़त्म ही नहीं होगा. That's never gonna solve मतलब the मैं ना problem. आई एम अ फुटबॉल फ़ैन, तो मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड का फ़ैन हूँ, तो मैं क्या कहते हैं, इट नेवर एंड्स. मतलब हाँ, जब हम चेल्सी किसी फुटबॉल क्लब से जीतते हैं तो मैं देखता हूँ कमेंट्स में इतना बैंटर करते हैं, इतना लोगों करते हैं, अगले हफ्ते हमारे साथ हो रहा होता है. सो इट नेवर एंड्स, वो वापस उधर ही आता है. तो इट्स सो पॉइंटलेस. अल्टीमेटली मसले शायद हल करने से वो चीज़ ना पैदा हो, सिर्फ एक हार्मनी, एक ब्रदरहुड, एक कम्युनिटी, एक सेंस ऑफ कम्युनिटी अगर आई थिंक आ जाए ना, तो वो जो एक पीस आएगा ना, वो बहुत सारे मसले हल, मतलब उससे कुछ और ही क्रिएट हो जाएगा. एंड आई हैव स्ट्रगल्ड कि
यार मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्पिरिचुअल लोगों से कनेक्ट करता था, सब पाकिस्तान से बाहर होते थे, और कुछ लोग जब यहाँ आते थे मैं देखता था वो जिन मुल्कों से, मतलब हर किसी का एक एनर्जी सिग्नेचर होता है, वो बहुत लाइट होती थी उनकी एनर्जी। यहाँ पे ज़ाहिर है अनकॉन्शियस में इतनी गिल्ट है हमारे, ये पेन है, तो वो हैवीनेस भी होती है। तो मैं कहता यार मैं इधर हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मैंने करना क्या है। और मैं ये भी अपने आप से ही सवाल पूछ रहा था मैंने क्या करना है, और ये काम आई डिडंट प्लान दिस, और ये होता रहा। तो और आज हम यहाँ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, और आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन हो ही इसलिए पाई बिकॉज आप उस जर्नी से ख़ुद गुजरे। ये मेरा भी एक इसमें सवाल एक आंसर हुआ, बिकॉज मैं शायद सोचता था कि जो उस जर्नी से नहीं गुजरा होगा उसको मैं फिर कैसे समझाऊंगा, बट मैं नहीं समझा सकता। और या Makes sense. Ahmad, I'm going to wrap this up. We're at the 1 hour 30-minute mark, but thank you so much. This was very unconventional. The way that the podcast went, as well as the way that I sort of drove it. But I mean, I'm trying to, I don't know, connect with my inner self more and just let go and let's see what the comment section says. So thank you so much for taking the time out and agreeing to do this. Yeah. One last thing I just want to add. I know I have so much respect and admiration for you doing this. It doesn't matter how it pans out and all that, just because सिर्फ अपने तन्हाई में ही किसी के साथ 1-on-1 में ये करवा लेने के लिए जो चाहिए होता है, और आपने ये पॉडकास्ट पे कर दिया। बस पता नहीं अल्लाह ने आपसे क्या काम लेना है। Thank you, sir. I hope अच्छा ही हो. But thank you so much for coming in. My pleasure. And Thank sharing you so all that much. insight. एक बात मुझे बताएं अहमद भाई, if anybody wants to get in touch, what's the way to reach out to you? So मैं मोस्टली इंस्टाग्राम के ऊपर, मेरा एक इंस्टाग्राम हैंडल है साइकिक एल्केमी के नाम से, दे कैन DM मी ओवर देयर। वहाँ पे मैंने अपना नंबर भी डाला ही हुआ है, तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। Sounds good. So वो खैर इंस्टा तो इनका consistently throughout the podcast appear होता रहा है. If you're watching on video, for folks in audio, the Insta handle is in the description as well, so you can check that out if you want to reach out. आप DM भी कर सकते हैं, WhatsApp भी कर सकते हैं. But anyways, this was Sayyid Muzammil Hassan Zaidi. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.